So now again 5 to 7 students have lost their path coming to the class. So now we have 35, 42 से अब 35 हो गए. पिछले 3-4 classes में 42 रहते थे, अब 35 हो गए. ओके, सेशन आपका 10th दिसंबर को एंड हो रहा है या 9th दिसंबर? 8th है सर शायद, मतलब 8th तक क्लास है, मतलब 9th को एंड हो जाएगा. अच्छा 8 तक, 9th से. ओके. So this is the block diagram and the time diagram is also there. If you don't make this, it's okay, but you have to explain this block diagram. Before going to the block diagram, we have to discuss the important circuit in this one. This is a ramp generator, this part. Rest is more or less having the similar kind of behavior. You know about the counters. This is a counter actually. This whole part is a counter kind of thing and having a display also. This is a comparator, this is a clock, this is a control signal, this is a gate, which is sometimes called as enable gate or clock gate, and this is a ramp generator. So this is the important part of this circuit. So this ramp generator, how it works means this one. The block diagram of single ramp is given in the next page, and the most important part of the circuit is the ramp generator. Ramp generator is a nothing but it is an amplifier. It is a OA. OA is the operational amplifier. And there is a feedback line, and if you look at the circuit, this is called as integrator. The circuit is called as integrator, so it just do the integration. So this is the function which you are going to get. How we get this voltage? If in a very short way, if I say you, so there is a very high resistance is within this operational amplifier. So this Z in is tending to infinity. So if this is infinity, so there is no big potential drop across this particular resistance, which is the internal resistance or input resistance of a operational amplifier. So this point, if you're looking at A and this is ground, so this ground is pulled to A. So this A become virtually ground. So this is a characteristic of op-amp, that if you attach a circuit in this way, that if you make positive terminal as ground, then negative terminal of op-amp will also become a virtual ground. Not exactly. Normally इसमें जो current होता है वो nano amperes में होता है, और इनमें जो currents हैं वो milli amperes में. So hardly have any big difference. So whatever the current is going from here, it will go to this way. It will leave this part, but वो इसको leave ही नहीं करता है. There is a property, you need a amplification also. So if this is a virtual ground, then whatever the current is going in this way, it is, I have also drawn this current is an opposite phase because this is negative sign. जो आपका potential है ना, negative terminal पर अगर आपने input दिया है तो output आपका out of phase आता है input के respect में. रहेगा तो उसी के comparable या उससे कोई amplified version होगा, but out of phase होगा. If it is at 0, this will be at pi. So there is a out of phase relation between these two voltages. And if you attach this voltage at positive terminal, then the input and output are in phase. ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, डिटेल में आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में. So if this is virtually ground, then whatever the current which is IR must be equal to IC in magnitude, you can say. Obviously relation में negative है, but magnitude में the both are equal because hardly there is a current which is going in this direction. तो हम लेके चल सकते हैं कि this is going in this way, and this is out of phase, so that is the direction is shown in this direction. IR you can easily write as VI upon, if this is grounded, then this potential is 0. तो potential आपके जो resistance है उसके दोनों end पे क्या है, VI minus 0, so that is VI by R. And what about this one, IC? There is a potential at output, this is V output, and there is a potential at this point, and there is a resistance. So you can easily write as what? क्या लिखेंगे IC के केस में? Q equal to क्या होता है, CV और dQ by dt, which is current, which is C dV by dt. So that is dV by dt. It means this we can write as, this is a current which is passing through this capacitor, so that will be C dV naught. V naught इसलिए लिखा है because this is V naught minus this, the potential difference is only V naught because this one is 0. जैसे हमने इधर का किया वैसे हमने इधर वाला देखना है.
तो V नॉट डिवाइडेड बाय dt। ऑब्वियसली दिस इज आउट ऑफ फेज, तो नेगेटिव साइन लगा सकते हो, अगर मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ तो दे आर सेम थिंग, ठीक है। So we can easily calculate what is the value of V naught. So V naught will be dV naught equal to R इधर आ गया, dt इधर आ गया, that means VI dt divided by RC. It means V naught will be equal to integration of VI dt divided by RC. Normally RC is constant, so RC can be pulled out, so it is VI dt. तो अगर आप साइन वेव देते हो तो यहाँ कॉस वेव आएगा, ट्रायंगुलर देते हो तो ट्रायंगुलर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? If you have a sine, then output will be cosine. If you have a triangular like this one, say ramp कह सकते हो, या इस तरह का सिग्नल है, तो आउटपुट क्या होगा? इंटीग्रेट करो ट्रायंगुलर फंक्शन को. If you have a square, then what could be the output? क्या हो सकता है? ट्रायंगल का तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ना. V इनपुट अगर आपका इस तरह का फंक्शन है तो V आउटपुट कैसा होगा? फिर हम एक और लेंगे. If V input is constant, then what is V output? ट्रायंगल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? यहां से यहां तक का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? If it is something which is varying with time, यानी फंक्शन क्या आपका कोई वोल्टेज है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो V इनपुट इज V नॉट नहीं लिखते हैं, V डैश कर लेते हैं. V डैश इज अ कांस्टेंट वैल्यू इनटू t, और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या देगा मुझे? V डैश t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2. So something which is a something like this one. साइन नहीं दिखेगा, but it is a parabola kind of thing. Means it will be a more sinusoidal नहीं होगा, but आपको दूर से दिखेगा कि साइन फंक्शन है, but it is not sine. It is a square function kind of thing. तो up and down में वो फॉर्म होगा. What about this one? If it is a rectangular, means a square wave है. Asymmetric मैंने बनाया है, but square wave है. तो up to this, the voltage is constant. इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट का क्या होता है? लीनियर हो जाए. Linear हो जाए. So that will be something like this one. Triangular So wave. this is going to trace a triangular. When you have constant Vi, so if you look at this function, so this will be equal to 1 upon RC. Vi भी बाहर आ गया. Integration of dt, तो simply आपका Vi t RC आ गया. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ रह गया t. It means be something like this. जब तक ये कांस्टेंट अवेलेबल है तब तक वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है. तो this will generate this kind of signal. Up to certain time, it is going to generate a signal which can be a V maximum, whatever. You can have your truncation of time by some other circuit. So it will generate a ramp. So this is called a ramp output. तो रैम्प आउटपुट अगर इंटीग्रेटर से मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ पे इसको फिक्स रखना है. तो VI को अगर मैं फिक्स करता हूँ तो मेरा ये जो इंटीग्रेटर सर्किट है, that will integrate this function with respect to time and it will give me a straight line. क्योंकि t तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, t मल्टीप्लाई होकर के Vi जो भी आपने दिया उससे दोनों से मल्टीप्लाई होकर you will get the output because RC is also there. So the slope you can easily find, that is Vi by RC. You can easily see the slope and that will be constant. तो slope आपका change नहीं होगा. So here I have written the things, that is this one is the formula. Here Vi is constant. So the trend line of the output is shown above and the slope of this straight line is this one. Okay, which is and hence the V naught is directly proportional to time only. तो जितने टाइम तक आप ऑन रखोगे ये चलता जाएगा. There is a restriction by op-amp also कि आपने इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना दिया है. तो यहाँ पे लगाते हैं तो नॉर्मली +15 -15 होता है, तो इट कैन नॉट क्रॉस दीज टू वैल्यूज. अगर अपर रैंप अगर पॉजिटिव है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो रैंप इंक्रीजिंग होगा एंड मैक्सिमम लिमिट इट कैन गो अप टू +15. अगर आपका रैंप नेगेटिव है, आपने वोल्टेज माइनस दिया है, तो आपका रैंप नेगेटिव होगा. तो रैंप अगर नेगेटिव है तो इट विल गो अप टू -15. सो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ कर्व यू कैन गेट कि 0 से वो +15 जा सकता है और 0 से वो -15 भी जा सकता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ओके, इज इट क्लियर?
Yes, sir. मैथमेटिकली मेरे ख्याल से क्लियर होगा. सर्किट थोड़ा सा लग रहा हो कि ओपन है क्या ओपन पढ़े जा रहे हैं व्हाट इज ओपन एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली द ओपन इज. ओपन का जो बेसिक सर्किट है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर उसके अंदर होता है जो एक दो ट्रांजिस्टर से बना होता है एंड very simple. Means if you see that particular circuit, that is very simple, but the mathematics is very hard. बहुत सारे possibilities उसमें आ जाते हैं. It is simply if you want to see, this is the op-amp actually. Its basic working circuit is this one. Two transistors, and they are normally in here we can have a resistance, and this is your VCC जो आपने या +15 लगाया और नीचे आपका रहता है -VEE which is your -15 and these two are actually the inputs. So this is V1, this is V2. Normally इसको V से हम relate करते हैं क्योंकि बेस पे लगा हुआ है और ये हमारा आउटपुट होता है. This one is the output. So जो यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है ना इन दोनों का जिसको हम VD कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट है. तो एक एम्पलीफायर है दूसरा भी एम्पलीफायर है. इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस को ही एम्पलीफाई करता है जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट होता है. तो दिस इज अ सिंपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द सर्किट. बहुत सारी चीजें आपको दोनों का क्यू सेम रखना होता है रेजिस्टेंस मॉडुलस सेम होते हैं बहुत सारे रीजंस है. ओके दिस इज वन ऑफ द सर्किट विद इन दिस ऑप एम्प. उसके आगे भी दो एम्पलीफायर और लगे होते हैं. ओके नाउ द वर्किंग. So let us discuss the working. Let me just make it a bit small if it is visible to you. यहाँ तक टेक्स्ट विजिबल है so that circuit and working is seen simultaneously. Yes, sir. ठीक है टेक्स्ट विजिबल है. ओके सो नाउ द रैम्प इज हियर. तो ये फंक्शन हमें पता चल गया कि इसका फंक्शन क्या है और ये सिग्नल आपका कहाँ जा रहा है एक कंपैरेटर के पास जा रहा है. तो दिस इज द रैम्प एंड दिस विल जनरेट अ स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस वन. तो यहाँ पे प्लॉटेड है कि रैम्प का आउटपुट क्या है. अप टू सर्टेन टाइम इट विल जनरेट अ पॉजिटिव सिग्नल व्हिच इज इंक्रीजिंग and that is going to the again amplifier but that is behaving as a comparator. So there is no feedback line. Now we assume that the clock is running continuously. और बाकी आपको पहले बाकी पार्ट्स भी बताता हूँ. This is a simply a gate. एक AND gate है. AND gate का function क्या होता है? If any of the potential is high means any of the potential is low then output will be low. तो कोई भी potential अगर low है output हमारा low होगा. तो यहाँ पे तो मैंने एक जगह पे क्लॉक दिया है गिवन अ क्लॉक. तो कंटिन्यूअस ट्रेन एक जा रहा है पल्स का दैट इज गोइंग एट 1 पॉइंट. मींस वन ऑफ द इनपुट द ट्रेन इज गोइंग एंड द अदर एंड मींस अदर इनपुट इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ कंपैरेटर. कंपैरेटर का आप लोग ने C+D बैच में शायद कंपैरेटर अभी नहीं देखा मतलब सुना नहीं होगा कि कंपैरेटर क्या का फंक्शन क्या है. लास्ट टाइम मैंने बताया होगा कंपैरेटर का फंक्शन क्या है. If it has to compare the voltage. If this voltage is greater than this one means voltage which is given at the positive terminal, if it is greater than this potential which is at negative terminal then the output is positive and positive VCC saturation value तो +15 हो सकता है. अगर आपने 5 वोल्ट वाला यूज किया ओपन तो 5 वोल्ट होगा +5. If this one is greater than this one means whatever the voltage at negative terminal is greater than positive then the output will be negative. This is what the comparator has to do. It has to just compare करके आपको दिखा रहा है. यहाँ पे मीनिंग ये बता रहा है कि पॉजिटिव वाला वोल्टेज आपका ज्यादा है इनपुट पे और जब ये आउटपुट है तो आपका नेगेटिव वाला इनपुट आपका ज्यादा है. This is what it is showing us. If somehow this is the output of a comparator then this clock is this AND gate is not going to work because negative means less than 0. less than 0 को हम लॉजिक में 0 ट्रीट करेंगे. तो 0 ट्रीट में करने पे क्या होगा this nothing is there in this line. तो clock is not going or it is not passed to this particular line. If somehow this voltage is greater means if positive is greater जो हमने Vx अप्लाई किया है if that is greater then what will happen this is enabled gate. Now this line is 1 means for logic positive है +5 है तो logically this line is 1. So whatever the input at this point that is going to pass. तो जब 1 होगा तो 1 होगा means this square wave will come
and it will appear on this line. ये क्लॉक को पास करना शुरू करेगा. कब पास करेगा? जब आपका ये पॉजिटिव कंपैरेटर आउटपुट दे रहा है. तो पॉजिटिव कंपैरेटर आउटपुट कब देगा? जब Vx आपका इस रैंप सिग्नल से ज्यादा होगा. ठीक है, Vx आपका रैंप सिग्नल से ज्यादा होगा. यहाँ पे देखो ध्यान से, रैंप इज 0 and when the controller started the circuit, the ramp start increasing. ये इंक्रीज हो रहा है. once it on Vx जो हमने अप्लाई किया वो हायर वैल्यू है, 0 से काफी आगे है, some positive value has been applied. So when this ramp is goes on increasing, when it reaches to Vx, then only the output of this comparator is going to flip. Otherwise किसी भी पॉइंट पे यानी लेस देन t पे t1 पे चेक करोगे तो this ramp output is less than Vx, so output is positive, so clock is working, clock is passed through this particular gate. इतना पार्ट क्लियर है? Yes, sir. And if the clock is passing, it is going to a decade counter. This is decade counter, you can say division by 10. So this is decade counter 1, this is decade counter 2, this is decade counter 3. So there are 3 decade counters, so you will get 3 decimal numbers. Decade counter का meaning क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then 0 1 2 3 and so on. So it is goes on repeating. So whenever the clock counter पढ़ लिया आपने? Yes, sir. आज ही पढ़ा. Yes. अच्छा पढ़ लिया. तो उसमें आप mod 10, mod 3, mod 5 बहुत सारे काउंटर बनाते होंगे, mod 50. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो सभी का पर्पस क्या है? हाउ मेनी स्टेट्स यू वांट टू लुक. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? mod 10 का काउंटर है ये, तो इसको हम डिकेड काउंटर भी कहते हैं, which is counting only 10 states. तो 10 states means 0 से 9 and then again back to 0. तो you need certain enabling. आप 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हो और उसमें एक आप काउंटिंग लगा देते हो, तो जब भी 10 की काउंटिंग आती है तो सबको रीसेट कर देता है. यू कैन मेक द सर्किट इजीली. और किसी भी आपको कोई भी अगर वो दे दिया जाए कि आपको इतने काउंट के स्टेट को ही काउंट करना है, तो यू कैन इजीली मेक. आपको कुछ नहीं करना है, जो नेक्स्ट स्टेट अपीयर होता है उस स्टेट के अपीयर होते ही आपको सबको रीसेट करना है. तो यू कैन मेक द सर्किट इजीली यूजिंग एनी, नॉर्मली एंड गेट यूज करके ही बन जाता है. तो ये क्या करेगा? क्लॉक हाई होगा तो this will start counting. So when 10 clock pulse has passed, so this will count to 9. उसके बाद क्या होगा? फिर से next clock pulse आएगा, तो it will again reset to 0 and the next means now new digit will appear on this. तो ये subsequent counter लगे हुए. तो जब ये 9 तक काउंट कर लेंगे और फिर एक और clock pulse आएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. Then again it will go to 9. Then again the clock pulse come and again this will flip to 2 and means पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो ये 9 तक ये भी काउंट करेगा. फिर जब ये भी फिल हो जाएगा तो दोबारा ये नेक्स्ट को अप्रोच करेगा. तो इज समथिंग व्हिच इज 1 seconds, 10 seconds and 100 seconds. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन और बुक में भी आपको मेलविन में मिल जाएगा ये सर्किट. उसके बाद इसके आगे क्या मींस जब व्हेन द क्लॉक पल्स इज देयर देन ओनली दिस काउंटर्स आर वर्किंग, अदरवाइज इट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज अगर आप क्लॉक नहीं दे रहे हो तो काउंटर आपका वर्क नहीं करेगा. And every these counter is attached to a latch. Latch is something which is a flip flop that is going to store your number. तो आपका कहीं अगर ऐसा होता है कि भाई बाई चांस आपने यहाँ से कहीं एक रीसेट बटन भी है जिससे हम कंट्रोलर से मैनुअली रीसेट कर सकते हैं, तो एट एनी इंस्टेंट इफ यू वांट टू रीसेट तो ये तो रीसेट हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे. तो उससे पहले मुझे क्या करना है? जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, जो भी नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है या यहाँ पे जो भी काउंटिंग स्टेट चल रही है, I have to store them in a latch. तो ये यहाँ पे लैच में स्टोर हो जाते हैं. उस स्टोर्ड वैल्यू को नॉर्मली वो भी हमारा यहीं से जब हम रीसेट कर रहे हैं तो हम स्टोर भी कर रहे हैं. एट द सेम टाइम इट इज गोज ऑन डूइंग द स्टोरिंग एंड इट इज डूइंग द रीसेट ऑफ दीज काउंटर. लैच आपका क्या कर रहा है? डेटा को सेव करके रख रहा है. इट्स जस्ट डूइंग लाइक अ मेमोरी काइंड ऑफ थिंग. एंड देन यू हैव अ डिस्प्ले व्हिच इज अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर. तो आपको जब भी नंबर लिखना है तो आपको 7 LEDs की रिक्वायरमेंट होती है. And those 7 LEDs you can make a 7 segment and you can write 0 to 9. You can write all those numbers. You need only 7 LEDs to write those numbers and they are displayed here. तो ये वाला पार्ट सिर्फ क्या है? काउंटर, मेमोरी एंड दिस इज अ
7 सेगमेंट डिकोडर, जो नंबर आया उसको 7 सेगमेंट का एक डिस्प्ले ड्राइवर लगाया और यहाँ पे डिस्प्ले आपका हो गया। तो दिस इज पार्ट इज यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि क्या कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा, हम ऊपर वाले स्टार्टिंग लाइन पे आ जाते हैं। When we assume the clock is running continuously and at, हाँ बोलो सर बोलो। सर मैं पूछ रहा था सर, ये कंपैरेटर जो है इसमें दोनों सिग्नल यदि मतलब बराबर वोल्टेज मैंने अप्लाई किया तो सर वोल्टेज क्या होगा कंपैरेटर का? अगर both are equal, यस सर। if both are equal ना, तो both are equal at what level you are talking about, because this is able to detect a micro or less than micro volt। तो आप जो दोनों वोल्टेज अप्लाई करो, क्या इस रेंज तक उसकी प्रिसिजन है दोनों वोल्टेज की एक्यूरेसी की? दिस इज व्हाट द डिमांड इज। यस सर। हाँ मतलब ये अगर बिल्कुल इवन दैट विल डू फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट। आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर में क्या होता है, आपने उसमें भी देखा होगा जिसको कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जो फ्लिप फ्लॉप में होता है। आपने रेस अराउंड कंडीशन पढ़ा है ना? यस सर। रेस अराउंड कंडीशन में क्या होता है, both the output is trying to go at the higher level, which is not as a defined parameter of a flip flop। flip flop का parameter क्या है, definition क्या है? One is high, one is low। This should be treated as a flip flop। तो normally जब race around condition होता है तो दोनों के दोनों output क्या करते हैं? They want to make themselves one। But whatever reaches to the output first, that will decide कि दूसरा अपने आप ही zero हो जाएगा, because feedback line will work and that will become zero। In the same sense, in analog circuit also, when I was discussing these two transistors, so somehow they will try to make कि भाई अगर potential बिल्कुल ही exactly equal आपने डाल दिया है, तो आपका input क्या है? 0 वोल्ट है, ठीक है? यस सर। इनपुट आपका 0 वोल्ट है ना। अब इसको एम्पलीफाई करके आंसर आपका आइडियली आना चाहिए 0 वोल्ट, यही आना चाहिए ना। अगर V इनपुट मेरा 0 है तो मेरा V आउटपुट 0 आना चाहिए, ठीक है? एम्प्लीफिकेशन कहाँ हुआ सर एम्पलीट्यूड में? अब मैं आगे अभी मैंने बोला ही नहीं ना आगे मैंने बोला नहीं ना अभी कुछ। अगर V इनपुट मेरा 0 है तो आइडियली द वर्ड आई एम यूजिंग, आइडियली आई आउटपुट शुड बी 0, है या नहीं है? सर आइडियल का मतलब क्या कह रहे हो सर आप? मतलब एम्पलीट्यूड को इंक्रीज नहीं कर रहे? हाँ भाई, आपने तो दोनों ही 0 दे दिया ना। तो इनपुट अगर 0 है तो 0 एम्पलीफाई किसको करना है? एम्पलीफाई का बेसिक फॉर्मूला होता है V आउटपुट इज इक्वल टू सम एम्पलीफिकेशन फैक्टर बाय V इनपुट। If this number is 0, then whatever this number is, answer should be 0। यस सर। ठीक है? अब क्या होता है, दिस इज आइडियल केस, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द केस। द आउट इवन इफ यू अप्लाई 0 वोल्टेज, मींस दोनों टर्मिनल पे आपने इक्वल वोल्टेज अप्लाई किया, या दोनों टर्मिनल पे आपने 0 वोल्टेज अप्लाई किया, because to make voltage very precise up to a microvolt or nanovolt it is very difficult। तो क्या करते हैं, दोनों इनपुट को हम 0 कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू, है ना? तब भी तो डिफरेंस हमारा 0 है। हम तो इसी को लेना चाहते हैं कि डिफरेंस हमारा 0 होना चाहिए, तो मैं दोनों टर्मिनल को ग्राउंड कर देता हूँ। तो आई शुड गेट दिस आउटपुट, बट आई नेवर गेट, because this is an ideal case, you will get at least इतना आ जाता है, माइक्रो वोल्ट तक का आउटपुट आ जाता है with a positive sign and maybe negative sign। That will depend upon the how much doping you have done in these transistor, and you cannot do exactly equal number of doping। एक ही आपके जो मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी सिस्टम है जिसमें आपके ये सारी चीजें बन रही हैं ट्रांजिस्टर, और से सब कुछ एनवायरनमेंट सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, और जहां पे आप अपने चिप को डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो, everything is, the computer is same, he is design the computer which you have fed the circuit की भी ये मेरे को PNP जंक्शन बनाना है, और फिर दूसरा बस आप रेप्लिका बनाते जा रहे हो, but you will never sure that two transistor become identical। it is never possible। आप समझ रहे हो, डोपिंग जो हम कर रहे हैं 1 in a part of 10 lakh, तो those atoms 1 or 2 can increase or decrease or defect could appear by somehow। तो कभी भी दो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल एक ही फैक्ट्री से बन रहे हैं, एक ही सिस्टम पे बन रहे हैं, कभी नहीं बनते। दोनों ट्रांजिस्टर
सेम टाइम पे आपके बन गए हैं, फिर भी वो सेम नहीं होंगे, देयर विल बी सम डिफरेंस, so that difference will generate certain output. तो इक्वालिटी पे आपको कुछ भी, आप इक्वालिटी को चेक नहीं कर सकते हो कि दोनों इनपुट मेरे अगर इक्वल है तो आउटपुट जीरो आना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं आता है, इट विल गिव यू प्लस और माइनस. दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट आउटपुट वोल्टेज. दिस इज वन ऑफ द बेसिक पैरामीटर ऑफ अ ऑप एम्प. क्लियर? तो इक्वल पे कुछ भी नहीं होगा. इक्वल पे आप सोचोगे कि मेरा आउटपुट जीरो आना चाहिए, आउटपुट जीरो नहीं आएगा, यू विल गेट सम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. ठीक है? Yes. And Yes. the reason is that both the transistor can never be same. भाई हर इंसान भी अलग होता है ना. हर इंसान का डीएनए तो उतना ही है, आपके क्रोमोसोम्स भी उतने ही है, बट you see 10 billion people all are different. They have similar kind of proteins, they have similar kind of all the things, but all are different somehow. So there is minute changes are there, and that give a big amount of difference at the output scale. तो इक्वालिटी पे हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्वालिटी अगर है भी तो बहुत इंस्टेंट टाइम के लिए है, हमें उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. तो बिकॉज रैम्प इज देयर, इट इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इट विल क्रॉस दिस नंबर. तो व्हेन इट क्रॉसेस दिस बिकम नेगेटिव. तो इक्वालिटी पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है. इक्वालिटी में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, एंड दैट इज वेरी स्मॉल, दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज 1, सो इट विल बी 0 रफली. ठीक है? तो उसको हम ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं. इवन इफ योर इनपुट इज, प्रैक्टिकल भी आप करोगे, जब नेक्स्ट टाइम करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑफसेट वोल्टेज ऑफ योर गिवन ऑप एम्प. ये प्रैक्टिकल भी करते हैं बच्चे. ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम होपफुली फिजिकल में करोगे तो यू विल सी द ऑप एम्प एंड यू विल ट्राई टू कैलकुलेट ऑल दीस पैरामीटर ऑफ ऑप एम्प. ओके, नाउ वी कम टू दिस लाइन. सर हाँ बताओ. नेक्स्ट टाइम फुली फिजिकल ऑफलाइन होने वाला है क्या? अभी तक तो सब यही लग रहा है. तो ऑफलाइन ही हो जाएगा शायद, अभी तक तो यही है, बट वेट फॉर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा. बट दिसंबर तक वेट करो, अभी तो दिसंबर आने वाला है, तो आ जाएगा, नोटिस भी हो सकता है आ जाए. नो वन नोज, एनीथिंग कुड हैपन इन एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर, तो फिर से सब कुछ वैसे ना चला जाए. इट विल बी डिफिकल्ट, 1-2 महीना बड़ा मुश्किल होगा एडजस्ट करना सभी के लिए, टीचर्स, स्टाफ और बच्चों के लिए. Okay, so come back to this one, voltage Vx, and that we wish to digitize a positive voltage. तो हम कोई input voltage है जिसको हम digitize करना चाहते हैं. तो हमारा input voltage ये है, and we want to make it a digital value. ये आपके 3 bits के हैं, 4 bit के हो सकते हैं, 5 के हो सकते हैं, multiple bits के हो सकते हैं. That is up to your कि आपने resolution क्या रखना है. If it is not there a circuit, then we can adjust for a negative input signal. Means this line I have written that if there is a Vx which is positive, we require a positive signal, and if you have a negative signal, then what you can do, you just convert that signal to positive, and you just remember कि उसके आगे मुझे माइनस साइन लगाना है. तो अब जब डिजिटाइज करोगे भी तो आप मैग्नीट्यूड को डिजिटाइज कर दोगे, एंड देन यू विल हैव अ साइन बिट व्हिच यू कैन टेक मेक इट एज अ माइनस साइन. तो वो एक थोड़ा सा लाइन इसलिए लिखा है कि हमें एडजस्ट करना पड़ता है, सो दैट नेगेटिव इनपुट सिग्नल कैन बी मैनेज्ड. द मैनुअल रीसेट जनरेट्स अ रीसेट पल्स. तो यहाँ पे अब हमें जब डिजिटाइज करना है, जिस वक्त हमें करना है, देन यू हैव टू मैनुअली रीसेट, एंड दिस मैनुअली रीसेट कैन बी बिकम ऑटोमेटिक डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम. So this manual reset pulse that clears all the decade counter. ये आपके कहाँ लगा हुआ सिग्नल, जब आपने इसको प्रेस किया तो दिस इज अ नेगेटिव एज, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये सिग्नल जो बना दैट इज 0, so that is going to all the preset value. तो आपके प्रीसेट नहीं, सॉरी, क्लियर वैल्यू पे. तो क्लियर वैल्यू पे आपके ये नेगेटिव ट्रिगरिंग पे वर्क कर रहा है. तो इफ इट इज 0 देन ऑल विल बिकम 0. तो आपका पूरा का पूरा काउंटर आपका 0 हो गया. ठीक है? सो दे आर सेट टू 0. And the reset ramp voltage is 0 at this time. ये रहा. तो स्टार्टिंग में ये भी हमारा 0 हो गया. तो इसने दोनों को स्टार्ट कर दिया, रैम्प वोल्टेज को भी 0 कर दिया और इन काउंटर्स को भी 0 कर दिया. इट इज गोइंग टू बोथ द थिंग्स.
Since Vx is positive and the ramp begins from with 0, the output of the comparator OA, this must be high. जो मैंने पहले reason बताया था, this is higher, this is 0, so this will be high. So if this is high, means when you have done the reset has been done and the counting has been started. Because जब reset हुआ तो आपका ये output भी ये भी enable हो गया, और reset होने के just बाद आपके जैसे ही clock pulse आना शुरू हो गए, the counting has been started. The voltage enables the clock gate, allowing the clock to be applied to the decade counter, and the counter begins counting upward. And the ramp continues upward until the ramp voltage is equal to the unknown voltage Vx. तो तब तक वो काउंट करते रहेगा. तो जब तक ये रैम्प आपका अप होकर के Vx के इक्वल नहीं आ जाता है, तब तक आपकी तीनों काउंटर्स में काउंटिंग चलती रहेगी. At this point, the time t1, the output of the comparator goes to 0. जब इक्वल हो गया और just in an instant it crosses this and it becomes 0. This disable the clock. अब आपका clock off हो गया, counter cease हो गए, now they are not increasing, now they are freezed. वो नंबर आपके वहीं पे रहेंगे, और ऑब्वियसली वो काउंटर पे नहीं रहते हैं. काउंटर को जब 0 मिलेगा तो 0 भी होना शुरू हो जाएंगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो वी हैव टू take those number to the memory also, and the gate and the counter cease to advance. Simultaneously, this negative transition on the VC generates a stop signal in the controller. So we have made a controller in such a way that when this VC is 0, जो आपका VC output है ना, this one, VC कहाँ पे इसमें, VC must be here, which is actually the this one 0, ये वाला. तो जब ये 0 हो गया तो it is going a signal to the controller, and controller makes a stop signal in such a way that the counter sorry यहाँ पे था ना stop, and the shift the counter to the 3 decade counter into the 3 flip flop. तो जब ये आपका 0 हुआ तो उस टाइम पे मुझे क्या करना है, जो काउंटर की रीडिंग है उनको मुझे अपने मेमोरी में सेव करना है. तो आई कैन मेक अ सर्किट कि भी आपका कंट्रोलर यहाँ पे इनको भी स्टार्ट कर दे, और दिस विल स्टार्ट एंड कॉपी ऑल दोस डेटा व्हिच इज देयर इन द काउंटर. तो काउंटर का जो भी आउटपुट है उसको उसने कॉपी कर लिया. Shortly thereafter, a reset pulse is generated by the control box and the reset of the ramp and clear the decay. अब दोबारा next reading के लिए for the another conversion. So if you want to do another conversion, you just change the value of Vx and again you do the manual reset. तो आपको जब भी value दिया है तब आपको उसको change करना है. It is not doing simultaneously. It depend upon your choice. आपने input देना है, और जब आप ये इस click करोगे, इसको manually press करोगे, then everything is going to start. पिछले केस में क्या था, it was doing manually, so there was no control. So here we are doing in a other way. So we can whenever we want to do the digitizing of any particular signal, then we can do that. Okay, another conversion cycle begins. It meantime the content are displayed in this, वही मैंने लाइन लिखा हो, display in the 7 segment LED. तो बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. इस छोटे छोटे पार्ट्स में भी आप अगर वैसे तो वो भी है वो भी में तो आपने यहाँ से उठा करके वहां लिखना है सिर्फ. मैं भी क्या समझा रहा हूँ कि याद रखने की जरूरत क्या है? गलत तो नहीं मैं समझा रहा हूँ? सही समझा रहे हो सर. नहीं मतलब मैंने समझा दिया, फिर मैं जब ये कह रहा हूँ ना कि आपको बस ये इतना याद रखना है, तो मैं याद वाली वर्ड से ही मुझे ध्यान है, इट इज ओबी. तो याद क्या रखना है? If you are doing justice to yourself, Yes, then sir. you should remember, है ना? If you are doing justice to yourself, then you should remember. Otherwise, there is another way of doing this. Okay, so there is example. An example is this one. This is also given in the manual. So let us take that your Vx which you want to digitize. Just a hold
Okay, so I forgot कि भाई examination notification आ गया है. It is OB. Okay, so Vx is 345 millivolt, which you want to digitize, and this is 3 decimal numbers, and the clock frequency is also given to you, that is 1 megahertz. This clock frequency, this one. The voltage slope is Vi upon Rc, which we already know. So you can put the value, input, अच्छा वो भी दे रखा है. Voltage slope is also given to you. 1 volt per millisecond. This is what it is given to you. तो ramp में क्या है? Ramp की value आपकी given है. Then at the end of conversion cycle, the ramp will advance from 0 to this much. जब आप सारा system start होगा, it will start from 0. It will go up to this one. This voltage. This voltage will go from 0 to 345 millivolt. And this is what you have applied here also, 345 millivolt. ये ramp आपका यहाँ तक move करेगा. And how much time it will take, you can easily calculate because your clock is there. तो ये time आप easily calculate कर सकते हो because this will advance to this value, and वो कैसे होगा आपके 1 by 1 means the slope is given to you, so you can easily calculate how much time is required to make this much of value of voltage. So that is this time. So 345 microsecond ही लगेंगे. It means this much number of clock pulse is going to pass because each clock pulse is having a size of microsecond. मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रोसेकंड. तो आपका टाइम पीरियड माइक्रोसेकंड का है, तो एक क्लॉक पल्स जो हाई होगा, क्योंकि हाई और लो मिलकर के टाइम पीरियड बन रहे हैं ना, दिस इज टाइम पीरियड. तो वन हाई एंड लो, तो वन टाइम पीरियड में एक ही पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, तो एक टाइम पीरियड आपका माइक्रोसेकंड का है. तो इस नंबर को अचीव करने के लिए इतने माइक्रोसेकंड्स तो लगेंगे ही लगेंगे. The clock pulse has time period of this, which is also I have written. So three counters will advance. These three counters will advance from 0, 0, 0 to 3, 3, 4, 5, and this will be displayed on this particular display driver in this much of second. Hence, at the end of the counter content means when these voltage become equal, the output will be displayed as 345. जो कि ऐसे लिखा होता है ना. Yes, sir. So this is what you will see at the output. So when you see this number, this is actually the time, but it is equal to voltage also. So that is managed by the voltmeter कि भाई आपका जो display हो रहा है वो इस order में होगा, उसका multiplying factor 1 होना चाहिए, so that you can easily write कि जो मेरा display time हो रहा है actually वो कुछ भी नहीं है, वो voltage ही है. So this is how this is working, and this we can easily see this. Then there is a bit problem in this dual slope, and so in single ramp AD converter, so we make a use of dual slope. The drawback is actually the RC circuit, because the RC circuit is deciding your ramp. आपका जो ramp design हो रहा था ना, इस case में ये रहा, this one. So यहाँ पे RC is deciding the कि how the slope is going to vary. If your temperature changes during the measurement or during the conversion, then RC will also change. Means RC value is going to change because temperature के साथ R भी change हो सकता है और आपका capacitor भी change हो सकता है उसका value. If that value changes, then your slope may change, which is obvious कि अगर RC value मेरा temperature पे dependent है तो slope की value change हो सकती है. Means there is a maybe a bit problem. भी अगर slope नीचे जाता है तो it will take longer time to reach to the Vx. If the slope increases, then it will take lesser time to reach the Vx. तो हम लोग Vx को predict नहीं कर पाएंगे. तो there will be error in the conversion of the Vx value, which you want to convert. The variation of these values with temperature, with time and temperature. So this is a basic problem is there. So what we want to do, we want to remove the RC factor from our formula. तो अगर कुछ ऐसा सर्किट हम डिजाइन करते हैं जिसमें कि आपका RC अगर चेंज भी हो रहा है, वो चेंज मुझे इफेक्ट नहीं करेगा. Means from the formula I want to remove this one. What I can do is a new block diagram. Similar kind of working. There is no big difference, but थोड़ा सा बस आप देखो, आपके पास वहाँ पे ये वाला पार्ट था पहले से, ये भी पार्ट था,
ये पार्ट था, कंट्रोल वाज देयर, बाकी रीसेट और स्टॉप सिग्नल इज ऑलरेडी देयर, तो ये वाला पार्ट तो सेम वैसे ही है। बट थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओपैम्प यहाँ पे आ गया है, दिस इज एक्चुअली योर रैम्प सर्किट। ठीक है, यहाँ का रैम्प जो यहाँ पे लगा हुआ था रैम्प, उस पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो रैम्प इज ऑल्सो देयर, R and C, and it is negative, so it is a ramp. But there is a switch and there is a reference voltage. So these two are new things. There is a switch and there is a reference voltage. Vx was also there. तो सारा सर्किट सेम है, बस ये दो ब्लॉक आपके डिफरेंट हैं पिछले केस से, बाकी सारा मोडल सेम है। तो कंट्रोल आपका सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, आपके फ्लिप फ्लॉप को कंट्रोल कर रहा है, आपके लैचेस को कंट्रोल कर रहा है, आपके स्विच को कंट्रोल कर रहा है, और बस हाँ इतने ही को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नाउ this control is what it has to do, it has to shift the switch, ये स्विच को उसे शिफ्ट करना है। तो अब हम देख लेते हैं पहले सर्किट अब डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है, इट डज नॉट वी वांट टू गो इन बिग डिटेल बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग इज वर्किंग इन सिमिलर एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस, बट the basic understanding why this part is required and why these two things are required. So let us see this one. Initially Vx is connected to this one, this is a positive voltage. Okay, so Vx is connected to this one and this is a positive voltage, then this output will be a negative. ये आपका क्या है, उस समय हमने Vx कहाँ अप्लाई किया था, डायरेक्टली हमने कंपैरेटर को अप्लाई कर रखा था। पिछले केस में Vx की वैल्यू डायरेक्टली गोज टू द कंपैरेटर, and when it is going directly to the comparator, then the output was positive. ठीक है, अगर डायरेक्टली Vx मेरा यहाँ गया है तो मेरा सॉरी यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे ये भी थोड़ा सा फ्लिप किया है, पॉजिटिव यहाँ पे था उस केस में, नेगेटिव यहाँ पे था, तो ये भी थोड़ा सा फ्लिप है। So there is a flipping of these two things also. So when this Vx is positive, it is being amplified or being integrated, but the output will be a negative or out of phase. ये नेगेटिव वोल्टेज होगा यहाँ पे, वो नेगेटिव आपके नेगेटिव पे जा रहा है और आपका पॉजिटिव सिग्नल ग्राउंडेड है। पॉजिटिव सिग्नल क्या है, ग्राउंडेड है। तो दिस इज 0 वोल्ट एंड दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो आउटपुट शुड बी व्हाट, ये पॉजिटिव है, तो इसका इस कंपैरेटर इस इंटीग्रेटर का आउटपुट नेगेटिव हो गया, आउट ऑफ फेज होगा दोनों। अभी स्विच मेरा यहाँ कनेक्टेड है तो आउट ऑफ फेज है, तो ये नेगेटिव है, ये 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज दिस Vg, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Sir, it will be negative, no? Negative. Why it will be Sir, negative? negative is greater. Which one is greater? Which one is greater? 0. 0 वोल्ट is greater ना, Yes sir. ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव चाहे -10 भी हो, 0 से तो छोटा ही है। मैथमेटिक्स कैनॉट चेंज ना मैथमेटिक्स विल बी मैथमेटिक्स, नंबर लाइन तो वैसे ही चलेगा। 0 वोल्ट इज ग्रेटर देन माइनस वोल्ट, माइनस whatever the number Sir, you I'm have. taking magnitude. हाँ, magnitude, you are taking magnitude, but magnitude we have to take in the terms of polarity also. नेगेटिव आपके नेगेटिव पे है, बस आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली -4 इज लेस देन 0, Yes sir. इट इज अ मैथमेटिकल एम्पली, इसको हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मीनिंग है, एम्पलीफायर तो करेगा, ऑपरेशन मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक्चुअली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, ऑल दीज थिंग्स इट डज डू दिस ओपन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करता है। तो आपके जो कैलकुलेटर होते हैं, तो पुराने जो कैलकुलेटर होते थे वो एनालॉग कैलकुलेटर होते थे। एनालॉग कैलकुलेटर क्या करता है, एनालॉग नंबर्स को ऐड कर सकता है इजीली, मींस उसको डायरेक्टली नंबर्स को डिजिटाइज नहीं करना होता है, जस्ट के फीड द नंबर 2.456 दिया और दूसरे में दिया 6.457 दिया, दोनों को ऐड करके वो दिखा देगा। बट व्हाट दैट सर्किट विल बी, दैट विल बी एनालॉग एडर। तो ये हम एडर भी इससे बनाते हैं। अभी आपने डिजिटल एडर देखा होगा,
जो आप डिजिटल नंबर ऐड करते हो, तो हाउ यू ऐड, फर्स्ट यू हैव टू डिजिटाइज द थिंग, देन यू कैन डू द एडिशन इफ यू नीड अ डिजिटल, इफ यू आर रिक्वायर, इफ यू आर हैविंग अ डिजिटल एडर। बट अगर मुझे नंबर डिजिटाइज नहीं करना है, मुझे एनालॉग ही ऐड करना है, तो मैं कोई दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ, तो वी हैव दिस सर्किट, सो दिस इज अ दिस बिहेव एज एडर आल्सो। तो यहाँ पे सिर्फ वो कंपेयर करेगा, कंपेयर भी मैथमेटिकली करेगा, 0 is yes greater than -4, not in the magnitude but in the sign also. So this will be positive. If this is positive, so clock is on. The clock is on means this clock is going to pass through this particular gate, and it will go ping these counter, it will start the counting. ठीक है, तो काउंट डिटेक्टर फॉर टाइम t1। अब ये आपका यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये आपका काउंटिंग चल रहा है, और काउंटिंग यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम हमें फिक्स करना होता है। लेट मी जस्ट सी, वी बिगिन विद द assumption that the clock is running and the input is Vx is positive and the conversion begin the decade counter all the 0, and this is 0 volt and the switch to, since the Vx is positive, the integrator output will be negative and the comparator output will be positive, and the clock is allowed to pass through this, and the circuit allowed to ramp to proceed for a fixed time. टाइम हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, क्या आउटपुट जो है हमारा, हमें कहां तक जाना है, तो दिस इज कॉल्ड अ फिक्स टाइम। यू कैन डू द फिक्सिंग, हाउ यू हैव टू डू, हियर इज द सिस्टम। आप एक छोटा सा डिवाइस यहाँ लगाते हो, इसमें है कुछ नहीं, काउंटर की वैल्यू को मैच करना है। आपने टाइम फिक्स कर दिया कि मुझे इतने टाइम के लिए 100 मिलीसेकंड के लिए काउंट करना है, उससे ज्यादा काउंट नहीं करना है। तो व्हेन यू सेइंग कि 100 मिलीसेकंड, तो वंस द डिस्प्ले नंबर इज 100 or millisecond, you can keep it as a multiplier factor. So if the number is 100, then it has to reset the counter. तो काउंटर का क्या काम है, ये जो पार्ट हमने काउंट डिटेक्टर फॉर टाइम t1, तो ये टाइम t1 आप डिसाइड कर सकते हो, या आपका कंट्रोलर डिसाइड कर सकता है कि कितने टाइम के लिए मुझे काउंटिंग करनी है। बिकॉज यू इमेजिन दिस इज नेगेटिव एंड इट इज गोइंग रैम्पिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। आपका ये 0 से माइनस की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये माइनस में प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज अदर थिंग इज 0 वोल्ट। तो हमारे, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं टाइम फिक्स नहीं करता हूँ, तो इट गोज ऑन डूइंग द थिंग्स, और ये चलता ही रहेगा अपने लिमिट तक। तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रंकेट करना है, वो ट्रंकेशन के लिए मुझे एक डिटेक्टर लगाना पड़ेगा, वो इस फ्लिप फ्लॉप के वैल्यू को चेक करता रहेगा। वंस इट रीचेस टू द असाइन नंबर, देन इट विल स्टॉप, इट विल रीसेट द थिंग्स। Is it clear? This is the part which is drawn. This is a detector. So it is detecting the things. ये रहे, ये जो भी इनपुट है, इसमें जो भी काउंटिंग हो रही है, वो सारे डिटेक्टर को पास हो रहे हैं हर टाइम पे, और वो डिटेक्टर आपका चेक कर रहा है कि क्या मेरा काउंटिंग उस टाइम के लिए हो गया, या आई हैव टू स्टॉप, और आई हैव टू व्हाट आई हैव टू डू। सो देयर इज अ काउंट डिटेक्टर फॉर टाइम t1. This part is clear, half of the part. If not, then again Yes, I sir. can. This is positive, connected to the switch, integrator producing a negative, negative ramping is there. When it is negative, it will go on increasing in the negative sense. So this is 0, so output will be positive. So these clock are goes on counting. They will never stop. They will just go on counting. So what we do the counting for a given amount of time. So we have a detector that detects these numbers which is there in the counter, and it will stop after a fixed time. After a fixed time, when you have stopped, you reach to -Vc. आप एक -Vc पे वैल्यू पे पहुंच गए हो, इस वैल्यू की वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो -Vc है, ठीक है। Vc की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ये होगी, Vx डिवाइडेड बाय Rc इंटू टी, जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला सेम था। Vx हमारा फिक्स्ड वैल्यू है, तो Vx अपॉन Rc इंटू T1। तो T1 इज द टाइम विच आई हैव फेडेड हियर, सो हमारा ये फिक्स हो गया। Vc की वैल्यू मुझे पता है कि कितनी आएगी, बट वो पोलैरिटी में नेगेटिव होगा। क्लियर? यस सर। ओके, पोलैरिटी नेगेटिव कैसी हुई? ये हमारा ओपन है ना, ओपन हमने नेगेटिव से लगाया ना, अपना जो इंटीग्रेटर है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो जो भी अभी पॉजिटिव दोगे तो इसका आउटपुट नेगेटिव होगा। Vc will be minus of Vx upon Rc into T1. This is Rc.
पोलैरिटी हमेशा आउट ऑफ फेज होगा। ओपम ऐसे देखो, ओपम का जो आउटपुट होता है ना, ये माइनस साइन एक प्लस साइन, इसके दो इनपुट होते हैं। इफ यू गिव सप्लाई एट नेगेटिव, then output will be minus of Vi with some amplification factor. If you give the voltage at positive terminal, then the V output is in phase, sorry, in phase with the whatever the amplification you have decided. तो जब पॉजिटिव दोगे तो आउटपुट आपका, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो बहुत सारे टर्म है, वो सारे टर्म्स मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, तो बस इतना ध्यान रखो, नेगेटिव पे है तो नेगेटिव पे आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इट इन्वर्ट द सिग्नल। अगर सिग्नल ये है तो आउटपुट सिग्नल आपका ऐसा हो जाएगा कुछ, और इसमें सिग्नल ये है तो आउटपुट आपका ऐसा हो जाएगा कुछ। इट इज इन फेज, दिस इज आउट ऑफ फेज। ठीक है, इज इट ओके? यस सर, यस सर। ओके, अब हम आ जाते हैं, हम यहाँ पे पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा रीसेट करना है सब सारे काउंटर्स को। I will just see the line what I have written. This is our first part of this one. जो first slope है ना, इसका नेम क्या है? Dual slope. So there should be two slopes. एक slope तो हमारा हो गया, उसका working हमें पता चल गया। When the counter reaches to a fixed time, a fixed count at the time t1, the controller unit generates a pulse and that clear the decay counter. So now this counter will be zeroed, cleared. All the value become zero. And the switch the integrator input to the negative voltage reference VR. कंट्रोलर ने क्या किया, जब उसने चेक किया कि इसका काउंट सेट हो गया है आपके, उसने काउंट तक आ गया है, वीसी की वैल्यू एक पर्टिकुलर, ये जो आउटपुट एक पर्टिकुलर वी माइनस वीसी पे पहुंच गया है, तो दिस कंट्रोलर विल डू द रीसेटिंग ऑफ दिस। Simultaneously it will give the signal to this switch which will convert, which will shift this back to this one, and this is a reference voltage which is minus VR, माइनस लिखा है ना, नेगेटिव वोल्टेज VR। ठीक है, क्या है ये? नेगेटिव वोल्टेज VR, रेफरेंस वोल्टेज। दिस इज नोन वोल्टेज, यू कैन कीप एनी वैल्यू वॉट एवर यू वांट टू, आपके डिजाइन पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? थिंग्स व्हाट चेंजेस वंस वी रीच टू दिस टाइम? Reset and shifting of this switch to a new voltage which is minus VR, a fixed value. Now what will happen? This is minus, so the polarity now this will be positive value. अब वो positive suddenly नहीं आएगा because it is minus value, so from minus it will try to ramp to the positive value. इसको पॉजिटिव पे जाना है, बट इंस्टेंटेनियसली नहीं आएगा, इट विल डू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। तो नेगेटिव से स्टार्ट करके आपने पहले जो इंटीग्रेशन किया था, जीरो से आपने स्टार्ट किया था, यू हैव रीच्ड टू माइनस सी। नाउ द इंटीग्रेशन विल टेक द रैम्प फ्रॉम माइनस वीसी टू सम पॉजिटिव वैल्यू, नॉर्मली वी स्टॉप एट द जीरो वैल्यू। तो जब हम पॉजिटिव या कह सकते हो या जीरो वोल्ट पे हमें जाना होता है, तो दिस स्लोप इज पॉजिटिव, दिस स्लोप वाज नेगेटिव। ये स्लोप आपका पॉजिटिव रैंपिंग है, नेगेटिव से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव की। अगर ये मैं पिछले केस में अगर देखोगे तो इस वाले केस में स्टार्टिंग में, so it was starting from zero, it is increasing. In the same sense here also, you just look at this one, it is starting from some negative value, it will go up to positive value because this is a positive ramp now. तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा, it will have to shift to the positive but it will take time depending upon your whatever the RC you have attached. जो आपका RC कांस्टेंट होगा उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि when it will reach to the positive value. Till now what will happen, अगर आपका सडनली नेगेटिव नहीं हुआ है, मीन सडनली ये पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो अगेन दिस इज ऑन, ये गेट आपका फिर भी ऑन है बिकॉज माइनस वीसी से आप थोड़ा सा इंक्रीज हुए, माइनस ऑफ समथिंग आया, फिर माइनस ऑफ समथिंग, माइनस ऑफ समथिंग करते 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 धीरे धीरे जीरो आया, टिल दिस पर्टिकुलर टाइम विच इज T2, whatever this time is T2, जो बाद में आएगा आपके काउंटर में डिस्प्ले होगा, तो whatever this time is, till that this gate is on. तो क्लॉक दोबारा स्टार्ट हो गया है, यानी एक बार यहाँ पे रीसेट हुआ था क्लॉक एंड क्लॉक हैज स्टार्टेड अगेन, तो क्लॉक दोबारा काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है।
पहली काउंटिंग उसने फिक्स टाइम के लिए किया था, अब वो फिक्स्ड स्लोप के लिए काउंटिंग कर रहा है. व्हाई आई एम सेइंग फिक्स्ड स्लोप? बिकॉज VR इज फिक्स्ड, RC इज फिक्स्ड एंड T2 ये स्लोप फिक्स्ड है और T2 विल बी द टाइम व्हिच इज मे बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल मैं अगर एक और ड्रॉ करता हूँ इसी में, मैं कर देता हूँ कि Vx की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ. लेट मी चेंज द वैल्यू ऑफ Vx. इफ आई डिक्रीज दिस वैल्यू ऑफ Vx देन व्हाट विल हैपन? This will have a lesser you can say, अगर टाइम आपका फिक्स है ये ऐसे जाएगा, समथिंग लाइक दिस वन. ठीक है, एंड Yes. दिस विल बी पैरेलल. तो ये T2 आपका न्यू T2 चेंज हो जाएगा. If you have another Vx value, it will go this one and this will be parallel. So you can see this slope is changing, but they have to do for the T1 time. Here the slope is same, but they are counting for a different time. तो T2 वैल्यू चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने नेगेटिव वैल्यू पे रीच किया था. आपका ये टाइम obviously रिलेशन है कि T1 और T2 के बीच में भी रिलेशन है. We will see what that relation is. Ultimately we have to see the relation between Vx and converted value, that we have to see कि वो कैसे कर रहा है. तो this is what the different value you can say कि अगर मेरा Vx वैल्यू चेंज होता है तो मेरा ग्राफ इस तरीके का शो होगा. एक तरफ मेरा टाइम फिक्स है, दूसरी तरफ मेरा स्लोप फिक्स्ड है. तो slope fixed means all the lines will be parallel. Here T is fixed, it means all the slope may be different because obvious है आपका slope differ करेगा but time आपका fixed रहेगा. ठीक है, so everything will start in the same fashion. This will start counting. Now the counter at the end when this gate is going to change, अब क्या होगा? जब तक ये काउंट करता रहेगा तब तक करेगा जब तक ये जीरो नहीं होता है. Once it is zero and instantaneously changes to positive, this gate is closed. तो जो आउटपुट जो काउंट होगा once this minus VC से आपका जीरो वैल्यू तक रीच कर गया, तो ये जो काउंटिंग होगी वो T2 को डिस्प्ले करेगा. तो this all this counter will display the how much time has been elapsed while doing ramping from minus VC to positive in the positive ramping sense. ठीक है, so let us see what I have written. The integrator will now begin to generate a positive slope and ramp begins at minus this and increase steadily upward till 0 volt. And all this time the counter is counting क्योंकि गेट आपका पॉजिटिव था. And the conversion cycle end when VC reaches to 0. जब वो 0 पे रीच कर गया तो अब आपका स्टॉप हो जाएगा because clock gate is now disabled. The equation for the positive ramp is this one. The positive ramping equation थी, it is this one. In this case, the slope of this ramp is VR upon VC, which is constant. VR आपने अप्लाई किया था तो वो constant है. Vx आप चेंज कर सकते हैं because Vx आपका वैल्यू है जिसको आपने डिजिटाइज करना है. तो Vx can change, it means slope can change. Here VR is fixed, it means slope is fixed. Okay. So once you compare these two equation, जो आपका इस टाइम पे इक्वेशन था और जो इस टाइम पे इक्वेशन था, इसमें तो फाइनल आपने वैल्यू रीच की VC which is negative polarity, यहाँ पे मेंशन नहीं है, but it is in magnitude it is equal to this one. And here the VC which reaches to 0, again you can write VC is equal to this value because after T2 time it reaches to 0. तो ये जो आपका कैलकुलेशन है वो सेम उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. It means both the cases VC are same, so we can equate them. And when you equate them, Vx is just proportional to your VR, which is fixed, T1, which is fixed, and T2, which is displayed in the counter. No RC. गया वो काम से यहाँ से. अगर टेम्परेचर के साथ वो चेंज हो रहा था तो मेरे इधर भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, इधर भी वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा. RC का रोल यहाँ पे खत्म हो गया. Vx is proportional to VR, T2, T1. T2 is what? Number which is displayed in this particular counter. Is it clear? So much of on off switching, positive negative control reference counter latch. Is it okay? Excuse me sir. हाँ बोलो. सर मैं ऐसे पूछ रहा था जैसे काउंटर में दो जो इनपुट्स हैं उसमें सर मैं एक इनपुट में नेगेटिव सिग्नल को प्रोवाइड करा रहा हूँ
और दूसरा मेरा कहाँ 0 पे? वोल्ट पे है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? नहीं, काउंटर कहाँ पे? काउंटर कहाँ? ये वाले काउंटर की बात कर रहे हो? कंपेरेटर सर, कंपेरेटर सर। कंपैरेटर, कंपैरेटर में एक में आप 0 दे रहे हो, एक में नेगेटिव दे रहे हो, तो आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। और जो मैं नेगेटिव जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो नेगेटिव इनपुट जो कंपेरेटर है उसका नेगेटिव एंड पर ही मैं कनेक्ट कर रखा हूँ मैंने नेगेटिव को। हाँ हाँ, तो और नेगेटिव मैंने इनपुट रिवर्स आपको सिर्फ कंपैरेटर ये देखेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट ज्यादा है या नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट ज्यादा है। जिस भी टर्मिनल का इनपुट ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 इज ग्रेटर देन माइनस, सो द आउटपुट विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल कम है ना पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में, तो पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू ज्यादा है तो आउटपुट हमारा पॉजिटिव होगा। और वंस इट रीचेस टू 0, ये तो 0 में फिक्स कर रखे हैं, इसको ग्राउंड कर रखा है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। When it reaches to 0, it changes to positive, then this gate is closed. So now the counting will stop. तो आपने कितना रीच किया है? माइनस वीसी से यहाँ तक अगर नेट डिफरेंस देखोगे वोल्टेज का, तो दैट इज वीसी। आपने वीसी की वैल्यू तक काउंट किया ना। उसमें टाइम आपको t2 लगा बिकॉज आपका स्लोप फिक्स था। यहाँ पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है बिकॉज आपका टाइम फिक्स है। यस सर। बताओ अब। और सर ये अभी यहाँ पर सर जो हाँ बोलो। काउंटर डिटेक्टर फॉर टाइम T1 है, इसमें सर इन्होंने 1 सेकंड, 10 सेकंड, 100 सेकंड और 1000 सेकंड, ये मतलब क्या ले रखा है सर? ये ऐसा है कि जब आपका ये सेकंड्स हम लिखते हैं नॉर्मली, ये मिली सेकंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है, आपके क्लॉक पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है वंस, ये 1 सेकंड नहीं है एक्चुअली, 1 सेकंड कहना, ये एस जो लिखा है वंस टूज और टेंस वाला नेम है, सेकंड्स नहीं है, सॉरी। दिस इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड, एंड दिस इज अ डेसिमल नंबर एक्चुअली। काउंटर क्या करेगा, यहाँ पे 0 से 9 तक काउंट करेगा। अब जब दोबारा क्लॉक पल्स आएगा तो इट विल अगेन बैक टू 0 बिकॉज इट दिस इज अ डिकेड काउंटर। तो ये 9 के बाद अगला स्टेट इसका क्या होगा, 0 होना चाहिए ना। नेक्स्ट स्टेट विल बी 0। तो अगर आगे मेरा कोई काउंटर नहीं लगा हुआ है तो ये तो मेरा काउंटिंग 9-10 स्टेट्स ही कर सकता है, और 9 तक दिखाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक, जब ये 9 होता है, when this is 9 because these all are zeros, so when this is 9 and when it changes to 0 back, means दोबारा जब काउंट क्लॉक पल्स आता है तो ये 9 से जब 0 फ्लिप होता है तो उस टाइम पे ये 0 से 1 पे फ्लिप हो जाता है। तो जो नंबर मेरा क्या होगा, 1-0। ऑब्वियसली 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 9 के बाद तो 10 ही आता है ना। तो 10 को लिखने का तरीका क्या है, आप यूनिट्स प्लेस पे आपको 0 रखना है और टेंस प्लेस पे अब नाउ यू हैव टू मेक इट 1। दिस इज समथिंग लाइक अ ओडोमीटर। तो ओडोमीटर, कार की भी ओडोमीटर कैसे वर्क करती है, किसी की भी ओडोमीटर, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ओडोमीटर क्या वर्क करता है, सबसे पहले लास्ट डिजिट आपका चेंज होता है, तो 9 आने के बाद जैसे ही 0 होगा तो नेक्स्ट नंबर आपका 1 हो जाता है। और वो भी जब 9 तक पहुंच गया, नेक्स्ट अगर वो दोबारा से 0 होना है तो फिर थर्ड डेसिमल प्लेस वाला आपका नंबर चेंज होगा। दिस इज हाउ द थिंग्स आर। तो दिस इज अ डिकेड काउंट, दिस इज नॉट सेकंड। इसकी काउंटिंग कितने टाइम पे फ्लिप चेंज होगी स्टेट, वो क्लॉक पल्स डिसाइड करेगा। क्लॉक पल्स आपका कितने मिली सेकंड का है, माइक्रो सेकंड का है, वो उतने टाइम पे वो चेंज कर। तो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड thousands. So these are decimal places, these are not seconds, these are decimal places. Ones का number, tens का, 100 का, 1000 का, and so on. And it is divided by 10, divided by 10, what does it mean sir? Decade counter, decade counter को हम divide by 10 कहते हैं। It can count 10 states. या सर मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर है वो 10 से डिवाइड होके फ्रीक्वेंसी वो आधी हो रही है, ऐसा कुछ? नहीं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, मतलब उस सेंस में भी कह सकते हो। जो अगर सिंगल फ्लिप फ्लॉप होता है तो वो आपका क्या होता है, दैट इज हाफ कर देता है ना वो, डिवाइड बाय मतलब 2। उसको डिवाइड बाय 2 कहते हैं अगर सिंगल फ्लिप फ्लॉप Yes. होता है। 2 होते हैं तो डिवाइड बाय आपका मींस, Four. डिवीजन मींस एक्चुअली क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे ये एक ही नहीं है। अगर इसको, ये तो ब्लॉक में बना हुआ है ना, तो दिस ब्लॉक विल हैव 4 फ्लिप फ्लॉप। भाई 10 की काउंटिंग के लिए मुझे मिनिमम 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 10 की काउंटिंग के लिए मुझे कितने, Yes, sir. मिनिमम 4 फ्लिप फ्लॉप Four चाहिए ना, is- क्योंकि 8 तक मुझे, 7 तक ही मैं जाता हूँ जिसमें 1-1-1 आ जाता है। मुझे 8 और 9 काउंट करने के लिए एक और फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, और वो आपके
स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी एंट्री जो हो रही है और आपकी जो आउटपुट लास्ट जो आपका फ्लिप फ्लॉप होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी की वो डिवाइड बाय 10 के ऑर्डर में होगा, विच इज ऑब्वियस क्योंकि आप काउंटिंग 10 का कर रहे हो, तो आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो दिस इज व्हाट, अगर आप सिंगल फ्लिप फ्लॉप रखते हो तो इनपुट का कोई जो भी फ्रीक्वेंसी होगा आउटपुट उसको हाफ दिखाता है। एक और फ्लिप फ्लॉप अटैच करते हो तो 1/4 दिखाता है, एक और फ्लिप फ्लॉप अटैच करते हो 1/8 दिखाता है, एंड सो ऑन। बट आप इसमें सिर्फ 10 स्टेट को काउंट करते हो तो आपको जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो आपके डिवाइड बाय 10 में हो जाएगा। जैसे मॉड 3 के लिए डिवाइड बाय 3 हो जाता है, मॉड 8 के लिए डिफरेंट हो जाता है, मॉड 15 के लिए डिफरेंट होता है। तो इट इज just doing ki how many state you want to count and how much time is required for counting these states. तो divide by 10 का meaning है it is something which is a decade counter. divide by 2 होगा तो it is a single half कर रहा है frequency को। फ्लिप फ्लॉप में यही होता है ना, आप फ्लिप फ्लॉप का अगर देखोगे आउटपुट तो दोनों इनपुट आप जे और के को हाई कर देते हो और क्लॉक लगा देते हो। क्लॉक का जो भी टाइम पीरियड होगा आउटपुट का जो टाइम पीरियड होगा उसका हाफ होगा, इट विल डिवाइड, सिग्नल आपका डिवाइड हो जाता है। तो इट कैन काउंट ओनली 2 बिट्स, जो हाफ वाला होता है वो आपके 2 बिट्स को ही काउंट कर सकता है, 0 1 0 1, दैट्स ऑल। So this is a decade counter, that is why it is written divided by 10, or you can have a 10 states. आगे चले। Yes, sir. सर ये So, स्ट्रोब का मतलब? Strobe actually it is a kind of signal which just give the signal to these latches that you have to store the number. तो आपका जो रजिस्टर होता है, अभी फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ा है, अभी पढ़ोगे रजिस्टर, तो रजिस्टर भी फ्लिप फ्लॉप से ही बने होते हैं। तो वहां पे हम क्लॉक नहीं कहते हैं बिकॉज रजिस्टर का काम ऐसा होता है ना कि वो काउंटिंग नहीं करना होता है, इट हैज टू जस्ट स्टोर अ नंबर। तो वो जो वहां जो सिग्नल होता है ना उसको हम क्लॉक नहीं कहते, उसको स्ट्रोब कहते हैं। व्हेन यू इनेबल दोस गेट्स द फ्लिप फ्लॉप इट विल स्टार्ट द स्टोरिंग ऑफ द नंबर, क्योंकि आपको एक ही बार देना होता है ना, आप अगर लगातार देते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टोरेज मीन्स यू जस्ट कॉपी द नंबर एंड कीप इट विथ योरसेल्फ। तो आपको एक स्टॉप सिग्नल मीन्स इट इज समथिंग लाइक ए इनेबल सिग्नल फॉर दीज लैचेस और दीज फ्लिप फ्लॉप। ऊपर भी फ्लिप फ्लॉप ही है, नीचे भी फ्लिप फ्लॉप ही है। हाँ, हमने तो क्लॉक ही पढ़ा सर उसमें रजिस्टर में, हाँ रजिस्टर वगैरह। हाँ, तो वो देखो वो क्लॉक जब आप देख रहे हो अगर उस क्लॉक में सिग्नल चेंज होता रहता है और आप जे और के को हाई रखते हो तो आउटपुट तो आपका चेंज होता रहेगा ना, देन इट इज नॉट डूइंग Yes, sir. वर्क एज रजिस्टर। रजिस्टर का वर्क क्या होना चाहिए, एक बार उसने कॉपी किया अपने स्टेट को चेंज किया, देन इट विल रिलैक्स, उसको स्टोर करके रखना है उसे। अगर आप क्लॉक चेंज करते रहोगे और आपने जे और के को हाई रखा है तो थिंग्स क्या वहां पे आपका क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप जैसा, जो आपने एक तो डी फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ा होगा। जे के Yes, आपका sir. नॉर्मली काउंटर के लिए यूज होता है, डी फ्लिप फ्लॉप आपका डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप या स्टोरेज फ्लिप फ्लॉप भी कह देते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या सर्किट होता है, आपका इनपुट क्या होते हैं, दोनों इनपुट क्या करते हैं हम, नॉट गेट्स अटैच्ड होते हैं ना, तो एक 1 हो जाता है, एक 0 हो जाता है, या एक 0 एक। हाँ, एक आपका नॉट गेट लगा होता है बीच में। तो एक आपको Yes, क्या sir. करना है यहाँ पे, क्लॉक भी दोगे ना तो आपका नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, आउटपुट यानी क्यू वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। So that is why it is called as stop signal. It is not called as a clock signal. तो मेमोरी के लिए हम स्ट्रॉब यूज करते हैं, क्लॉक नहीं यूज करते। स्ट्रॉब को उसी तरीके से समझो जैसे इनेबलिंग दीज लैचेस टू स्टोर द नंबर। Yes, sir. Okay, next example already discussed in the class, maybe last time मैंने discuss किया होगा, यहाँ पे भी discuss कर सकते हैं। We can do the problem आएगा नहीं वैसे, but even if come then you can have the formula, you can easily do the calculation. Then we have digital multimeter. Digital multimeter is having an input, signal conditioning and analog to digital converter. This is very important. और यही सारा पार्ट हमने जो डिस्कस किया है, यानी हर एक मल्टीमीटर का या तो ये उसका सर्किट का मेन पार्ट है जिसमें कि आपका कन्वर्जन हो रहा है, या तो ये हो सकता है, या तो आपका साइमल्टेनियस कन्वर्जन भी, तो तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। And if you are not in a place where temperature is not changing, so you can use a single ramp.
if you are working in such a way that आप अफ्रीका में काम कर रहे हो जहाँ टेम्परेचर बहुत चेंज होता है, आपके वेरिएशन बहुत ज्यादा है, या आप इक्वेटोरियल प्लेन पे हो तो आपका टेम्परेचर वेरिएशन होता है. आप अगर अंटार्कटिका में हो तो टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा. -50 -40 है तो उतना ही रहेगा. एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी हम ही जम जाएंगे सर उधर. हाँ, ग्राम जनरेशन तो अलग सर, हम ही जम जाएंगे उधर. नहीं जाते हैं वहाँ पे, पीपल गो देयर बहुत डू द रेयर है रिसर्च. सर. हाँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मतलब उधर मतलब रिसर्चर्स जो हैं मतलब जाते हैं नहीं उधर. जाते हैं. हर साल हमारे इसमें से एनपीएल से एक्सपीडिशन जाता है हर 2 या 3 साल में. And the team goes there and they do because all have kept certain instrument, अलग अलग कंट्री का इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे है, उनके कमरे भी बने हुए हैं और वो कमरे में जाते हैं और दे गो देयर एंड स्टे फॉर 15-20 days और मंथ और वो अपना काम करके फिर वापस आते हैं. And they have to bring every waste, whatever the waste they take, whatever the food they have took, every waste, every single waste they have to bring it back. तो this is Yes, sir. very unusual. वहां पे आप कहीं फेंक नहीं सकते हो कुछ भी, ऑब्वियसली बाहर तो निकलते नहीं है, कमरे में ही रहते हैं, हीटर लगा होता है. एंड नथिंग कैन बी डम्प्ड, एवरी वेस्ट उसकी लिस्टिंग होती है वहां पे. वेस्ट की आपने कितना, हर की लिस्ट बना करके पैकेट बना करके वापस लाना होता है. इट इज नॉट सो इजी. तो अंटार्कटिका में जाते हैं तो वहां पे डिवाइस के लिए आपके बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड. They need certain that kind of IC which is being used at such a low temperature. Yes, sir. जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं है वहाँ पे बहुत ज्यादा हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज यू नीड दिस काइंड ऑफ सर्किट. सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द एनी डिजिटल मीटर. तो डिजिटल मीटर कुछ अलग नहीं है वो सिंपल मीटर ही है, बट उसमें डिजिटाइज एक पार्ट लगा होना चाहिए. एंड देन देयर इज अ डिजिटल डिस्प्ले. And if you want to do the analog display, then you have to again convert into the analog signal. तो आपका digital signal जब convert हो गया, you can display in the number form. But if you are interested कि मुझे ग्राफ भी देखना है, मुझे नंबर से मतलब नहीं, मुझे ग्राफ देखना है, मुझे पिक्चर देखना है कि कैसा वो आउटपुट आ रहा है, तो then again you need a DAC also, means digital to analog converter. Then it will have a display unit. So that is also a possibility. The these are the things which is being important block diagram for a digital multimeter. And the main feature of any digital multimeter, this can range, they have good amount of range, we बहुत variation तक को measure कर सकते हैं, there is no restriction. And the basic measurement that include current, voltage and means DC AC both and resistance. And the detailed block diagram is this one, which is अच्छा ये भी मैंने बना दिया है, मतलब ये तो एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है. एंड दिस वन आई हैव टू सी कि है क्या. हाई AC DC signal attenuator is there, EC converter is there, then there is a 4 dots, then converter is there, and then display, and then BCD, binary coded decimal output, interface, precision reference, ohm converter. Okay, so this is your different, means if your AC is there, then AC attenuator is required. If DC is there, तो DC attenuator will be different. And ohm converter means ohm अगर आपका resistance है उसके conversion के लिए, तो इसको नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है. This is not this is your input actually, which is having somewhere here. तो आप कनेक्शन चेंज कर सकते हो, आपका DC है AC है, आपके जब भी मल्टीमीटर चेक करो तो उसमें AC DC के नॉब्स मेंशन्ड होते हैं. So we cannot measure in the same knob, we cannot measure AC and DC signal. So we have to change or flip the signal. So थोड़ा सा circuit में modification होता है when you are measuring a DC or when you are measuring a AC. So that is why these 3 things are there. और resistance के लिए obviously that will be a different thing because you need a potential source also. In these 2 cases you don't require any potential source. And then once you have converted, you have attenuated or you have amplified whatever you have done. अगर low voltage है तो amplify करोगे, high voltage है तो attenuate करोगे. तो वो करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा AC कन्वर्टर भी लगा हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली जब यहाँ पे वोल्टेज जाना है तो उस AC से हमें जो एटीनेट हुआ है यहाँ पे ये लाइन मिस हो रही है, दिस इज कनेक्टेड AC कन्वर्टर. तो आपका दोबारा वो एक रेक्टिफायर होगा, रेक्टिफायर से आपका सिग्नल एक RMS वैल्यू में चेंज होगा और RMS वैल्यू फिर आपकी एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट होगा, देन इट इज अ डिस्प्ले यूनिट. सो देयर शुड बी अ कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज मिसिंग. So this is a simple block diagram, not so simple for you,
but it is a simple block Excuse me, diagram. For sir. DC, हाँ बोलो. Sir, why there is ohm converter? Because you cannot have the same line. जो आपका करंट और वोल्टेज मेजर करता है ना, उस लाइन पे आप ओम नहीं कर सकते ना. ओम के लिए हमें अलग से पोटेंशियल सोर्स देना पड़ता है. Because when you want to measure the this resistance, तो रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, पहले उसे आप सप्लाई दोगे. सप्लाई देने पे वहां पे क्या आप देखोगे, वोल्टेज क्या आया, उस वोल्टेज को आपने आगे एडी कन्वर्टर में भेजना है. तो वो जो कन्वर्टर लगा है, दैट इज एक्चुअली सप्लाइंग अ वोल्टेज टू द रेजिस्टेंस and then it is doing the measurement of that particular voltage only. So that is why we require this one. हम directly resistance को measure नहीं कर सकते ना. रेजिस्टेंस को हम ऐसे अटैच करें और देखें कि रेजिस्टेंस आ गया, तो इंटरनल सर्किट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को पहले करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करेगा. जब वो प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे एक आपके पास वोल्टेज मेजर करने के लिए डिवाइस होना चाहिए जो उसके वोल्टेज को सेंस करेगा और कितना करंट आपने पास किया तो उसको कंपेयर करेगा और फिर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू एक तरीके से इट विल ट्रीट दैट वैल्यू एज अ वोल्टेज वैल्यू एंड इट विल कन्वर्ट द थिंग्स टू your digital display kind of. Ultimately it will convert to a digitized, means the analog होगा यहाँ से सिग्नल हमारा और उसको डिजिटाइज करके फिर डिस्प्ले पे करेगा. तो इट इज नॉट गोइंग टू डू इन अ सिंगल शॉट. जैसे वोल्टेज के लिए तो बहुत इजी है, आपने Vx अप्लाई कर दिया वो डिजिटाइज हो गया, करंट है उसको अप्लाई कर दिया वो डिजिटाइज हो गया, लेकिन ओम तो ऐसे डिजिटाइज नहीं हो सकता ना. तो इस दैट इज व्हाई दिस ओम कन्वर्टर इज देयर. You require certain more circuit for measuring a resistance. ठीक है Sir, but in the digital multimeter we have also seen a amplifier also. Means before the amplifier we have RC coupling, and after amplifier we also have a RC coupling, and before RC Yes, coupling we yes. have also attenuator. Yes, we will have those coupler also. तो हमारा एक रेंज होगा, आप में वो वहाँ मेंशन होगा कि आप 0, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट या 2000 वोल्ट. उससे ज्यादा करने के लिए आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए. तो ये हमेशा रेंज हमेशा मेंशन होगा, उसके आरसी वैल्यू जो लगी हुई है, उसके सर्किट पैरामीटर्स जो लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रेंज मेंशन होगा. तो किसी भी मीटर में ये सारी चीजें मेंशन होगी. So here we doesn't use amplifier. We also use only attenuator. Means we only giving the switching range of the voltage, and that's we are measuring the voltage. Yes, why we always use attenuator? Because normally we assume that the input is very high. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में आपको करंट और वोल्टेज ज्यादा नहीं चाहिए होता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा इनपुट है हमेशा ही ज्यादा है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग से. तो वी नीड टू स्टेप डाउन इट. एटेन्यूएशन मींस वी हैव टू डिक्रीज दैट. तो नॉर्मली मैं अगर 10 वोल्ट मेजर करना है तो 10 वोल्ट आगे इन सर्किट के लिए फिजिबल नहीं है. वो तो 1 वोल्ट और 5 वोल्ट में वर्क कर रहे हैं, हार्डली 1 वोल्ट में वर्क कर रहे हैं या उससे भी कम में कर रहे हैं. जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 0.2 वोल्ट इज हार्डली द, नाउ इट इज असाइंड एज अ लॉजिक 1. तो 0.2 is a very small value, 200 millivolt. So they are working in a very low voltage. So we need to attenuate those signals. You can even use amplifier. If your voltage is in micro also, then you can do that. Even micro भी digital के लिए बहुत मुश्किल नहीं है. You increase the number of bits, it can even measure the microvolt also. तो यहाँ पे कोई amplifier की जरूरत पड़ती नहीं ज्यादा. Amplifier की requirement हो सकती है. If your signal is very small, then you can need to amplify that also. तो इसलिए वो यूजली बनाया नहीं जाता इसमें. मतलब अगर आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो तो वहां पे आप एम्पलीफायर लगा सकते हो कि आपका वोल्टेज कम है लेकिन जो आउटपुट है वो आपका 1 मिली एम्पियर पे वर्क करेगा या 50 मिली एम्पियर पे वर्क करेगा. तो यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू. बट यहाँ पे तो आपका सब कुछ 1 मिली एम्पियर या उससे भी कम में वर्क कर लेगा ना. तो दैट इज व्हाई वी डोंट रिक्वायर एम्पलीफायर. Yes, sir. Okay. Or precision reference is something which is something that is I have shown. किसी ने पूछा नहीं, यहाँ पे एक decimal point यहाँ mentioned है. So this decimal point can be shifted anywhere. So that will give me the, for example, let me just write it. 2, 3, 4, 5. Okay. And this decimal point can be shifted. तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे बहुत प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, मतलब मेरा मेजर्ड वैल्यू है 2.345, ये वोल्टेज मेरा कहीं पे आ रहा है वो मैं मेजर कर रहा हूँ. डिस्प्ले ने सबसे बेस्ट प्रिसीजन में इस डेसिमल प्लेस को यहाँ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. तो मैंने प्रिसीजन पॉइंट
सेलेक्ट किया कि मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो मुझे डिमांड करूंगा कि 3 डेसिमल वैल्यू आनी चाहिए मुझे आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट. So this is the most precise value you are able to measure. If I switch my selector in such a way that it show me 2.35, so what I have done, I have selected this decimal point to be shifted to this point. तो 23 तो नहीं बनेगा, लेकिन वो क्या दिखाएगा, आपने जब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया अपने प्रिसीजन को, तो आपको 2 ही डेसिमल पॉइंट चाहिए एट द एंड आफ्टर डेसिमल, so it will make it 3.5. If you want less precise, मुझे ज्यादा डेसिमल पॉइंट से मतलब नहीं है, so what I will do, I will shift this back to this point. So what I will see, 3.4 volt. Same value I am reading, but when I choose the precision, that precision will change the value. यहाँ पे 2.4 दिखाएगा, यहाँ पे 2.35 दिखाएगा, यहाँ पे 2.345 दिखाएगा. और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, I will shift here, so it will show me 2 volt. So error will be there. So you need to check कि आपकी precision रखनी क्या है, आपको कितने डेसिमल ऑर्डर तक आपको रीडिंग चाहिए, so that you can decide easily. तो उसमें मेंशन होता है हाई प्रिसीजन लो प्रिसीजन का 2 नॉब्स लगे होते हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हो या रेंज को भी आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, okay. Yes. So now some of the parameters here I have written, and ये इस रहा कि इतना कुछ भी नहीं रहा, मतलब ये एक्चुअली रेंजेस एंड पैरामीटर. कई बार क्वेश्चन आता है what are the basic specification of a digital multimeter, then this is what you can write. Some of the things are there, and advantage is there. DMM is high measurement accuracy, instrument is high input impedance, smaller in size, meter eliminate observational parallax and approximation error, and the output of the instrument can be directly fed to the computer for further analysis and use. Specifications are these. तो आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो कि कहाँ तक को मेजर कर सकता है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. When I will share, you can check those specifications. So now we are left with only that I will do in the next class, digital frequency counter and digital time interval period. That's all. So this is the last page we have, and the problem you can see from the Malvino. Malvino से ही ये diagram है, तो Malvino में आपको problem भी मिल जाएगा. Very easy, simple problem. So this is one page I'm left with. Okay. Sir, one So- thing is left in the previous diagram, sir. बताओ क्या. Sir, BCD output, हाँ it means नहीं, कहाँ BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल. oh, बाइनरी Okay. कोडेड डेसिमल आपने पढ़ा होगा, जो 6 के उसमें चलता है. आई थिंक समथिंग लाइक दिस वन. नंबर मुझे याद नहीं है, वो 6 के ऑर्डर में चलता है, 6 का मल्टीपल होता है. 6 के बाद हम दोबारा उससे काउंटिंग करते हैं. लेट मी जस्ट सी यू मेक यू कि बाइनरी कोडेड डेसिमल है क्या. Means there is a decimal conversion of a the binary conversion of a this decimal numbers. तो वो conversion आपके क्या होते हैं, 0 0 0, and let us go for 9. So that is 7 will be something which is 0 1 1 1, 8 will be 1 0 0 0 and 1 0 0 1. This is 9. बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या होता है कि आपका जो 10 है वो मतलब यही काउंटिंग आपकी अवेलेबल, मींस एक्चुअली जो डेसिमल नंबर्स हैं उसी का सिर्फ कन्वर्जन आप बाइनरी करो. इसका जो नंबर आएगा, इफ यू वांट टू राइट 10, तो 10 लिखने के लिए आप ये नहीं लिखोगे. जैसे अगर मुझे डेसिमल में ही लिखना होता तो 10 में कैसे लिखता, 1 0 1 0. दिस इज माय 10. डेसिमल का जो 10 है वो बाइनरी में ये है. 10 2 बार 10 हो जाता है बाइनरी में. 10 आपका 2 10 बन जाता है बाइनरी में. यही है ना. हाँ, yes. लेकिन इसको 10 नहीं पढ़ते, इसको 1 0 1 0 पढ़ते हैं. कभी भी बाइनरी में ना नंबर मत पढ़ना. कई बार बच्चे पढ़ते हैं कि 0 1 then 10 then 11. बच्चे वैसे पढ़ते हैं, तो
That is right. It is always said in the form 1001. इसी form में आपको कहना होता है binary number. So this is decimal 10. You can say this is base 10 and this is base 2. This is how you write 10. But जब आप बाइनरी कोडेड में वर्क करते हो ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल में, तो आप क्या करते हो, आपको 10 नहीं लिखना है. 10 is not this number. 10 will be this one. 0 0 0 1 and 0 0 0 0. 4 बिट में ये लिखना है आपको. तो दिस इज योर BCD यू कैन से. तो हम अलग डेसिमल ही यूज करते हैं जब 10 लिखते हैं, तो इसके लिए अलग किया, इसके लिए, क्योंकि नॉर्मली BCD ही आपको यूज होता है. 10 के बाद आप दोबारा 9 के बाद आप दोबारा 10 लिखने के लिए एक दूसरा डेसिमल पे चले जाते हो. दिस इज समथिंग व्हिच इज बाइनरी कोडेड डेसिमल. बट डिटेल में देखना पड़ेगा कि क्या, बट है दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ decimal number. This is a binary coded decimal. This is not exactly converted decimal value of your so converted binary value of your decimal number. तो यहाँ पे जब हम एडिशन भी करते हैं तो एडिशन में भी कुछ थोड़ा लॉजिक चेंज होता है. वी हैव टू ऐड, आई थिंक 6 को ऐड करते हैं तो हमारा नंबर जनरेट हो जाता है. मे बी कोई नंबर चेक करना चाहो तो उसमें 6 ऐड करो, इट विल गिव यू द नेक्स्ट नंबर. इट इज समथिंग लाइक दैट. मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है उतना एग्जैक्टली. ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक यूनिट रह गया, मतलब एक टॉपिक रह गया. दिस इज अ फ्रीक्वेंसी काउंटर, हाउ वी मेजर द फ्रीक्वेंसी, एंड वी विल फिनिश ऑफ दिस SEC. So we are left with how many? 1 2 and 3. 3 क्लासेस हमारे पास और हैं अभी. 9th को शायद क्लास नहीं होगा, तो 2nd 25th और 18th. So these are the 25th को हो सकता है मैं छुट्टी कर दूंगा. नेक्स्ट क्लास तो ले लूंगा, लेकिन 25th को मैं छुट्टी कर दूंगा. तो नेक्स्ट में हमारा खत्म ही हो जाएगा. तो क्वेश्चन पेपर भी हम, हाँ बोलो. बोलो, someone is asking something. ना सर, पूछा नहीं था कुछ. अच्छा, तो एंड कर दे या कुछ पूछना है और? एक आधी क्लास में थोड़ा सा रिवीजन ही करवा देना सर, ब्रीफ में, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो, मतलब जो एक क्लास बचेगी तो. यस, सेकंड का बचेगा ना, सेकंड दिसंबर. यस सर, 25th का मेरा फंक्शन है, इसलिए उसमें शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. यस सर, वो कोई बात नहीं, बस सेकंड में चल जाए. हाँ, तो नेक्स्ट में हम एक क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी काउंटर है वो खत्म करेंगे, और क्वेश्चन पेपर हमारे 1 या 2 विल डिस्कस. तो हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा. वैसे तो OB है. OB में क्या रिवीजन करना. ओके, प्रियांशु का DP, आइंस्टाइन का DP ले रखा है उसने. आइंस्टाइन इज गोइंग फॉर अ लेक्चर. प्रियांशु, Yes, sir. Einstein is going for lecture. Yes, sir, I suppose. ये शायद किसी कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है ये इसका ना. सम कॉन्फ्रेंस वाज देयर, उसमें ये पिक्चर था. ओके, चलो फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर Thank you, sir. हाँ बताओ, बोलो. सर यहाँ पर हम उसका कंपैरेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं अभी. कंपैरेटर का क्या डिस्कस करना है सर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपैरेटर. इंटरनल स्ट्रक्चर वही है जो मैंने डायग्राम आपको बना के दिया था. अभी रुको दिखा दो. दिस वन. Internally, it is the basic amplifier is this one. Yes, and whatever the voltage you are giving means हो सकता है V1 या V2 आपकी पोलैरिटी. मैं आपको डायग्राम भी दिखाई देता हूँ. लेट मी जस्ट शो यू द एग्जैक्ट बुक का डायग्राम दिखा देता हूँ आपको. जस्ट होल्ड ऑन. लेकिन सर इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें आउटपुट 2 होनी चाहिए ना, मतलब इनपुट जो शुरुआत में जो कंपैरेटर में 2 आउटपुट होते हैं, सॉरी इनपुट होते हैं, वो कहाँ है? 2 इनपुट ये रहे, ये इसके VB को डिसाइड कर रहा है ना. ट्रांजिस्टर का जो एक्टिवनेस है ये दोनों डिसाइड करेंगे ना, V1 V2.
और ये VC आपका है, ये VC1 VC2 कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को हम मेजर करते हैं, उसी को हम डिटेक्ट करते हैं। Means something as if VC1 with respect to VC2 you are measuring how much that value is. तो आपको सिर्फ इसका potential difference measure करना है, इन दोनों के बीच में ड्रॉप कितना है, that you have to measure. Let me show you the diagram. रुको मैं बुक ओपन करता हूँ, कौन सी बुक का फ्लॉइड की है, तो let me just show you. अच्छा बाकी बच्चे चाहें तो लीव कर सकते हैं। बाकी मैंने कल एक C+D से एक डिस्कस किया था that we are going to start if something all the things in a good way, then we can start a short-term course on film kind of work, means direction, acting, cinematography, script writing, something like that. तो कोशिश कर रहे हैं जनवरी से स्टार्ट करने का। यस सर, सही है। हाँ, उसमें आपके पास 1 month एक जनरल आइडिया होगा, then 3 months स्पेशलाइजेशन या 2 months के स्पेशलाइजेशन, and then there will be a paid internship. Paid internship का meaning है you may get a chance to work with someone on the paid basis, means not free because it is very costly, not that much costly, but that will be paid. Means you will have the exposure of working with certain people who are working in this Bollywood. So they are working in serials or some kind of radio or in film also, and they can give you internship. They can give you a project for 1 month and you have to make something. तो आपको चांस मिल सकता है अच्छा। That we are planning to start. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 4 month का कोर्स होगा और 2 या 1 month का एक प्रोजेक्ट वर्क होगा। बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहते फर्दर मोर आफ्टर learning 3 semester, now they don't want to go for physics, so they have an opportunity and they can do something better there also. Okay, so let me just क्योंकि फिजिक्स करने का कुछ है नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं बताऊं कि फिजिक्स करके आपको डायरेक्ट जॉब कहीं नहीं मिलनी, फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। Everything is on the same footing even after doing physics. फिजिक्स क्या बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारे ही हैं। देखो ग्रेजुएशन में थोड़ा सा कॉमर्स और इको वालों को थोड़ा सा डायरेक्ट मिल जाता है आफ्टर डूइंग दिस थिंग, मिल जाता है सर वो तो। हाँ बट फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। केमिस्ट्री पीपल आल्सो फाइंड सर्टेन जॉब इन केमिकल और फिजिक्स वालों के तो मिनिमम भी एमएससी ही मतलब लेते हैं। हाँ एमएससी मतलब if you are going for the physics then you need to do the MSc, even after that also it is not sure. हाँ ये करेक्ट। So that is why just switch to something new earlier so that you can have more time to earn. This is what you have to keep in your mind. Start early, earn more, live happy. This is the main motto. After 50 no one should work actually, they should enjoy their life. मतलब 50 तक वैसे तो हो जाते हैं बुढ़े ही, बट 50 के बाद आराम से बैठ करके एंजॉय करो। बात तो सही है सर। 50 में अगर एंजॉय करना है तो वर्किंग जो होनी चाहिए पहले कमाओ। हाँ 20 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो 20 से स्टार्ट नहीं है। इफ यू आर लेट, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग एट 30, देन यू हैव टू गो टू 70, सो दैट इज वेरी पेनफुल। एंड हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज थे, सब कुछ वैसे ही था, तुम्हारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं, बट यू हैव द पॉसिबिलिटी। आजकल लोग स्टार्टअप स्टार्ट करके दे अर्न सच अ बिग अमाउंट। तो मैं तो यही कहूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द फर्दर स्टडीज, जस्ट गो फॉर समथिंग व्हिच इज न्यू एंड स्टार्ट लर्निंग। मतलब ऐसा प्लान बनाओ कि 25 में आपकी एक हेल्दी इनकम होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, आपके घर की नहीं। घर वाली तो होगी वो अलग है, बट यू शुड हैव अ हेल्दी इनकम इन 25 और फिर 50 तक काम करो। 25 years इज वेरी
गुड इनफ। आराम से अगर अच्छे से वर्क कर रहे हो तो 50 तक करो, फिर एंजॉय करो। अगले 20 साल जस्ट एंजॉय विथ योर फैमिली एंड घूमो दुनिया में। मतलब बेचारे हम कितने लोग ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड भी नहीं देख पाते। इंडिया वर्ल्ड तो दूर की बात है, इंडिया में भी कई जगह नहीं घूमते। तो ट्राई टू गो देयर एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, सो इस बच्चे को एक बार मैं शेयर करता हूँ। आपका क्या था, आपको वो देखना है ना, हाउ दिस इज वर्किंग। सो दिस इज द बुक, आई एम शेयरिंग द एम्पलीफायर, दिस इज द एम्पलीफायर and where is this open loop differential amplifier 584. So 600 I have to open. So this is the basic diagram which I was saying to you. Roughly around 90 transistors are used to make these amplifier. So there is a differential stage, basic amplifier, which is a voltage amplifier, and then there is a push-pull amplifier. This is the differential amplifier. So there are two outputs, but that output is coupled in such a way that reference of this value with respect to this one is always seen. You don't take two output. So these two are inputs and these are the outputs. So we always take reference of this with respect to this. So always there could be a chance that if this one is greater and this one is lesser, if this is less, then for example, there's a transistor working area. If this is less value, means the VB is less, then this is not so active. So if it is not so active, its resistance is very high. If this resistance is very high, then this potential drop is also a good value. If this is a very high value, means this transistor is very much conducting. So if it is conducting, this is not offering any big value of resistance. So whatever the potential drop is there, that will be less than this value. And what you are doing, you are taking the value of this with respect to this. तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो आउटपुट आपका नेगेटिव आएगा। आउटपुट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब वही अगर उल्टा कर दे, यानी ये आपका काम, इसको आपने इंक्रीज कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया, तो आउटपुट विल बी पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन द एम्पलीफायर। एक ये इतना सिंपल भी नहीं है वैसे समझने के लिए, but pictorially if you are looking at this diagram, then it is very simple. If this is more, then this will be less, and this is more less, then this will be more, something like that. And you are taking the difference. तो difference आपका positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. Even if you keep these two equal, then you are never sure कि जो current यहाँ पे IC travel कर रहा है ना, दोनों transistor से same होगा. It is never going to be same. So there is a bit difference. If it is a bit difference, then they will give you certain output voltage, which is called as offset voltage. तो वही सारा यहाँ पे explain किया हुआ है. So this is how they have explained the diagram also. Small positive voltage. So this is very high. This is grounded. This is very less. So depend upon कि आपने किस तरह के configuration में attach कर रखा है. तो हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा. This is done by the engineering people. Engineers होते हैं ना, वो डिटेल में पढ़ते हैं because they have to make these amplifiers. And there are different modes. This is called single-ended mode. This is called differential mode. Both you are applying input at both the inputs. दोनों out of phase apply कर रहे हो. Common mode में दोनों in phase apply करते हो. This is differential phase. This is a common phase, common mode phase. So there are so many things. पूरा chapter है amplifier का. Input offset voltage to make the output zero. Input bias current is there. This is input resistance. Normally this is infinite. बताओ अब क्या पूछना है इसमें? There is output resistance also, which is roughly zero or very small, 2 to say 50 ohms roughly. कहाँ गया वो स्टूडेंट? बताओ, मैं दोबारा उस डायग्राम पे आ जाता हूँ. ये क्या हो? तो सर हम जो ये हाँ बताओ.
सर ये जो आउटपुट हम जो ले रहे हैं ना, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, ये ट्रांजिस्टर 1 और ट्रांजिस्टर 2 का डिफरेंस है केवल, है ना? हाँ, हमारे Voltage- पास ये दो, हाँ देखो हम क्या करते हैं, दो आउटपुट है, बट हमेशा इस आउटपुट को विद रेफरेंस टू दिस वन वीसी। तो अगर ये बड़ा है तो आपका आउटपुट इसके रिस्पेक्ट में तो माइनस आएगा ना, अगर ये छोटा है तो आपका पॉजिटिव आएगा, दोनों इक्वल है तो जीरो आएगा। मैं जीरो को चेक कर रहा हूँ जीरो के रिस्पेक्ट में तो आंसर विल बी जीरो, मैं जीरो को चेक कर रहा हूँ +5 के रिस्पेक्ट में तो आंसर विल बी -5, मैं जीरो को चेक कर रहा हूँ -5 के रिस्पेक्ट में तो आंसर विल बी +5। This something like that. You're just making a difference of these two, and that is being measured at the output. Yes sir. और ये जो दोनों है ना इनपुट, ये आपके इस VB को, जो आपका VB चाहिए आपको नॉर्मली 0.7 वोल्ट चाहिए होता है, तो ये VB बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ और किसी पर्टिकुलर स्टेट में रखने के लिए। फॉर एग्जांपल आई जस्ट show you the transistor basic function BJT. Transistor bias circuit, this one 164. So this is how the transistor work. These are the charges, and there is a barrier base. This book is very good. They make you understand in a good way. Let me just show you the characteristic of transistor. Sir, which book is this? This is Floyd Electronic Devices. Floyd की book है. RL Floyd है क्या है? This is 192 page now. This is this one. Electronic Devices conventional current version. वैसे बहुत costly है, but this is by Floyd, Thomas L. Floyd. Electronic Devices, 7th edition. So here we are. This is a basic characteristic of a transistor. There is one more thing which is missing, is the load line. जो ऐसे बना होता है. IB की वैल्यू डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी IC की वैल्यू चेंज होती रहती है. ठीक है, IB की वैल्यू अगर 0 है, still there is a some current is passing through this particular circuit, even if this is 0. So that is actually the reverse current, you can say, because due to the minority charge carrier. So that is always going to have certain value. Let me show you the, this is the basic, any amplifier when you design, this is what you have to make two things. इसको कहते हैं हम लोड लाइन. तो ये डायग्राम आपका क्या है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर मेरा वोल्टेज मेरा मैक्सिमम कितना है और करंट जब 0 है तो मैक्सिमम वोल्टेज मैं क्या अचीव करता हूँ, दैट इज इक्वल टू VCC. नॉर्मली आपका VCC अटैच होता है, ये रहा सर्किट. किसी भी सर्किट को ले लो, तो कोई भी सर्किट अगर यूज करते हो तो दैट इज सेम, दे आर बिहेविंग इन द सेम वे. So VCC is this one and VB is this one. So if this is 0, then or current is 0, you have a very least amount of current, then how much potential drop you are getting at the transistor. So this is what you are drawing here. And when you have very high current, and what the potential drop across the transistor, because at very high current, when the current is passing in a high value from the transistor is offering very low resistance, so there is no potential drop. तो आपका ये रफली देखो, जिसको VC सैट कहते हैं, सैट इज सैचुरेशन, दैट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज होता है, 0.1 0.2 के आसपास. और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट. अब हमारा एम्पलीफायर जो है ना, एम्पलीफायर को हमें क्या करना होता है कि हमें किसी ऐसे पॉइंट पे चूज करना होता है अपने डिवाइस को कि उसका VC मुझे यहाँ रखना है और IC मुझे यहाँ फिक्स करना है. अब जब पैरामीटर चेंज होगा, यानी अगर VC बढ़ेगा या VC घटेगा, स्टिल आई विल बी ऑन दिस लाइन ओनली. अगर मैं बाई चांस मेरा यहाँ पे पहुंच गया मेरा VC या यहाँ पहुंच गया, तो मेरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ पे चला जाएगा. बाई चांस मेरा ट्रांजिस्टर का जो VC मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ चला गया, तो सैचुरेशन पे चला जाएगा. तो इट इज नॉट गोइंग टू, दिस इज अ
off kind of situation, this is a on kind of situation. But when we are doing the amplifier, we have to keep ourselves between these 2 points. यहाँ पे हमें छूना भी नहीं, इतना दूर जाना भी नहीं है. We have to keep ourselves somewhere here. And I can show you the transistor, how the amplification is done in a graphical way. वो next में होगा शायद. The amplification graph, you can see how the things are amplified. जो पहला चैप्टर होता है हमेशा स्विच ऑन और ऑफ के लिए सिखाते हैं ट्रांजिस्टर में. एम्पलीफिकेशन हमेशा नेक्स्ट में आता है. दिस इज ट्रांजिस्टर बायस सर्किट. बायस के बाद आएगा एम्पलीफायर. यस, दिस वन. दिस इज हाउ द डायग्राम वी मेक. So this is IB. IB is decided by your base voltage. और है डायग्राम ये रहा. So this is your base voltage. Input voltage जिसको कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे करंट के सेंस में, but you can always draw in the voltage sense also. So this conversion between these two value is now giving a big value of, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज आप दे रहे हो इसका ट्रेंड कुछ इस तरीके से, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है, और आपका जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज VC. VC is input value. So how this is amplification is done. If you suddenly increase this value, then it will go into the cutoff region. हमको नीचे दिखा देता हूँ, ये देखो. If it is go beyond the cutoff, then you will get this kind of cut in the output, which is not a good for an amplifier. Similarly, if you go below this, means this is saturation, this is cutoff. So your नीचे वाला जो आपका पार्ट है वो कट हो गया, और दोनों तरफ हो गया तो आपका सिग्नल ऐसा हो जाएगा. तो इसको हमेशा this type of graph, sir, this type of graph we have also seen in the power supply. Yes, तो आपने इनपुट बहुत ज्यादा रखा हुआ है. कट ऑफ सैचुरेशन हो गया था वहां पर भी. पावर सप्लाई में तो डायोड है ना, तो डायोड इज अ डिफरेंट थिंग. डायोड तो स्विच ऑन और ऑफ हो सकता है, एम्पलीफाई नहीं कर सकता. सिग्नल को या तो पास करेगा या तो रिस्ट्रिक्ट करेगा. यस सर, लेकिन सर ट्रांसफार्मर की बाद में हम प्रोब लगा रहे थे, उसमें हो रहा था ऐसा. वो डायोड है ना, उसमें भी यही कट ऑफ आएगा. यहाँ पे ये रेक्टिफायर थोड़ी ना हो रहा है, ये शिफ्ट होकर के इस डायरेक्शन में पोलैरिटी इसकी चेंज नहीं हुई है. पोलैरिटी तो दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव मेंटेन्ड है, बट वो सिग्नल ही हमारा मिस हो गया. सिग्नल क्यों मिस हो गया? बिकॉज इसके आगे करंट इंक्रीज नहीं हो सकता है. ट्रांजिस्टर से आप करंट एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हो, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा. तो करंट इज फिक्स्ड. इवन इफ योर वोल्टेज इज चेंजिंग, इनपुट वोल्टेज आपका चेंज हो रहा है, बट करंट इज फिक्स्ड, सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. एंड व्हेन यू गो इन द नेगेटिव सेंस, देन आल्सो द करंट इज फिक्स्ड, सो यू कैन गो बियॉन्ड दैट. सो दिस इज फिक्स्ड. करंट का यहाँ दिख रहा है और वोल्टेज का यहाँ दिख रहा है, तो दोनों ग्राफ आप देख सकते हो. वोल्टेज को हम नॉर्मली देखते हैं और आगे भी इसने बनाया होगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू सेलेक्ट योर क्यू पॉइंट. इसको हम क्यू पॉइंट कहते हैं. तो क्यू पॉइंट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के डिजाइन में. तो क्यू पॉइंट इज क्लोजर टू सैचुरेशन, देन कट ऑफ विल हैपन. इफ इट इज क्लोजर टू द अदर थिंग, देन थिंग्स विल मींस बोथ द केसेस. आइडियल जो सैचुरेशन यहाँ पे, आइडियल कट ऑफ यहाँ पे, दोनों केसेस से आपको अवेयर रखना होता है अपने आप को. So there are 3 chapters which covers all these topics. So one by one you can study. And next उसमें कब पढ़ोगे आप सारा, जो आपका ट्रांजिस्टर है ना, उसका मेन ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, देन देयर बायसिंग, एंड देन देयर एज अ एम्पलीफायर. तो तीनों इस तरीके से पढ़ा जाता है. अच्छा, ये बुक में शेयर कर दूंगा, but this will require DJ View software to open this book. PDF नहीं है ये, DJ View फाइल है, तो उससे खुल जाएगा. ठीक है, तो अब एंड करें. यस सर. ओके, थैंक यू सर.